Can you see the screen? Yes, sir. And I'm going to play the video. Okay, sir. Just check. Just check the video. Okay? Okay. Playing, sir. Playing fine. Sir, RT sir has joined us. Sure. So we can start. Sanjeev sir, Yeah, RT sir has joined us. Sanjeev ji, good morning. Good morning, sir. How are you, sir? I'm good. Thank you very much. You are doing the best job. Everybody is appreciating. Archery is doing the best. Thank you, sir. No, Archie will also win the medal at the Tokyo Olympics. मेरे सभी coaches join कर लिए और सभी लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, sir. There is no doubt if we have people dedicated as you are, there is absolutely no doubt in India getting a medal in archery. Of course, sir, we will get a medal and Sai is helping us a lot, sir. I think so. I want to thank Sai because जो ये इन्होंने जो vision का था आपके RD सर का आपका ये जो vision था कि हर एक coaches को हम लोग इस कोरोना के समय में ट्रेन कर पाए, तो ये ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो साई लेके आया है आज इंडिया की, सर. थैंक यू. It will help. Sanjeev, we have brought in this training program in 16 disciplines. But trust me, not a single program director is matching your efforts. Sir, it is all of you, sir. It is just a question of all of you have had faith in the Archery Institute of India, and I'm sure you deserved it. You deserved it. You are doing so well. You are putting your 100% effort. Thank you. Unbelievable. Thank you, sir. So happy, sir. Thank you, sir. Can I start, sir? Yeah, I have to make a request before we start. Sure, sir. And I would request you to repeat it when the session gets over, Sanjeev ji. Okay, sir. The request is that, in the evenings, every evening at 5 o'clock, we have a sports science center, a sports science lecture, okay, on the Zoom. Every evening at 5 o'clock. And that is all, I would request that anybody who is joining on this group to learn about archery, they should also join that group at 5 o'clock every evening. Sure, sir. I'll tell them, sir. I'll inform everybody, sir. Getting experts from world over to speak on the diet for players. We are speaking, we are talking about psychology. We are talking about physiology. Every aspect of sports science is being discussed. Perfect, sir. Sure. 5 o'clock, Vishwajit, I would request him to share the ID. Yes, sir. Yes, sir. I will share the link here. Can you please share the ID? Yes, sir. I'll share the link in the chat box for everyone. Now please let everybody note it down and then also make a request. Sanjeev ji will make an appeal in the end of the we'll do that. Time of, and everybody should please join and aware of that opportunity. Okay, sir. And you will find it is really, really interesting and really, really useful. Thank you, sir. Okay, sir. Please go ahead, sir. And Sanjeev ji, I will request you to repeat it once more because not everybody has joined yet. But please do it at the end of the program. Sure, sir. Thank you, sir. Please go on, sir. Right. Okay, sir. Good day, sir. Yeah, nice. Good morning, everybody. आज का जो विषय है हम लोग का वो है एलीट कोचिंग के ऊपर. एक बहुत ही सब कोचेस में डिफर करता है, बट क्या अगर आप देखेंगे कोरिया को, जो हमारे जो इंटरनेशनल अगर जायंट्स हैं जिनको कोरिया हम साउथ कोरिया बोलते हैं, तो उनको अगर देखेंगे और उनकी पद्धति को देखेंगे तो वहां पे हर एक जो कोचेस हैं वो एक ही लाइन में बात करते हैं. और उन्होंने पिछले 84 से लगातार अपने स्पोर्ट्स साइंस को इंप्रूव करते चले गए हैं. उनके कोचेस आज पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं. तो आज जब हम एलीट कोचिंग की बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको वो सब चीज बताने का जो कोरिया कर रहा है या जो यूएसए के जो ओलंपिक, तो हम ओलंपिक चैंपियंस को के बारे में, उनके शूटिंग के बारे में बताएंगे और उससे देखेंगे कि क्या चीज हम लोग को करना चाहिए, क्या चीज ये जो टॉप के वर्ल्ड एथलीट्स कर रहे हैं, क्या हमारे इंडियन एथलीट्स कर रहे हैं. तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और हम लोग थोड़ा सा साइंस की भी समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोच करते हैं, आप कोचिंग करते हैं या आपके एलीट आर्चर्स, उनको जरूरी है साइंस को समझना. आर्चरी का गेम एक साइंस का गेम है.
ये मोशन का गेम है, एक फोर्स का गेम है। तो जब तक हम अपने साइंस को नहीं समझेंगे, साइंस बिहाइंड द आर्चरी नहीं समझेंगे, तब तक हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कि जब हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन तो उसका क्या मतलब होता है, जब हम बोलते हैं कि एक लाइन में रिलीज करना, उसी लाइन में बो को जंप करना, उसका क्या मतलब है। वो तभी आप समझ पाएंगे जब आप फोर्स, जो न्यूटन्स के लॉज हैं, उसको समझ पाएंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज वर्ल्ड ओवर लोग बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आर्चरी की बात करते हैं। जब हम बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्या हम बायोमैकेनिक्स समझ रहे हैं। दूसरा, अगर हम बायोमैकेनिक्स समझ रहे हैं तो कैसे हम शूटिंग लाते हैं, कैसे हम उसको बायोमैकेनिकली शूट करते हैं, जिससे आपके इंजरी कम होंगे, आप लॉन्ग रन तक खेल पाएंगे, पीक में परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सब तभी पॉसिबल है अगर हम स्पोर्ट्स के साइंस को समझे, हम अपने जो न्यूटन्स लॉ को समझे और कैसे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है आर्चरी में, उसको समझे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज अगर हम समझेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। आप स्क्रीन देख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। सो जो हमारा आज की जो बात हम करेंगे वो बेसिकली हम प्रिंसिपल ऑफ आर्चरी, हम ओलंपिक जो मेडलिस्ट है कोरिया के, उनके शूटिंग फॉर्म को देखेंगे। हमारे जो ब्रेडी एलिसन है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो आपके यूएसए के, उनके शूटिंग फॉर्म को एनालाइज करेंगे। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट क्या चाहिए एक हमें ओलंपिक मेडलिस्ट को तैयार करने के लिए, उसके बारे में देखेंगे। इकोसिस्टम जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं उसके बारे में देखेंगे। मेंटल टफनेस, कोरियन आर्चर्स क्या बोलते हैं, यूएस आर्चर्स क्या बोलते हैं, उसके बारे में सुनेंगे। बायोमैकेनिक्स की बात करेंगे और फिर फाइनली द टेकअवेज रहेगा। अगर हम इस प्रोग्राम को देखें जो कि भारतीय तीरंदाजी संघ और स्पोर्ट्स खेल भारतीय खेल प्राधिकरण दोनों के तत्वाधान में ये जो ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम किया जा रहा है, ये बेसिकली कोचेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आर्चर्स भी इससे सीख सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सबको ये जानना होगा कि जब हम ओलंपिक की बात करते हैं, और ये टोटल फोकस है हमारा टोक्यो ओलंपिक जो अगले साल होने वाला है, हमारे पास पूरा 1 साल बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स का मेडल भी अगर हम देखें तो वो उसका जो डिजाइन है वो यही कहता है कि हम स्पोर्ट्समैन को ग्लोरी को अचीव करना है। एथलीट्स हैव टू स्ट्राइव फॉर विक्ट्री ऑन अ डेली बेसिस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि वी हैव टू विन, इनकलकेट द फीलिंग ऑफ विनिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम तैयारी करते हैं, कोचेस जो आर्चर्स को तैयार कर रहे हैं, क्या वो उनके मानसिक संतुलन को चेंज कर रहे हैं, क्या वो मेंटल प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हर दिन वो अपने को जीतते देखे, हर कंपटीशन, हर एरो उनके लिए टोक्यो ओलंपिक के लिए लड़ रहे हैं, उसको मेंटल फ्रेम बना रहे हैं। तो उस चीज का इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तक वो जीतेंगे नहीं मेंटली, तब तक वो फिजिकली नहीं जीत सकते। ये प्रूवन फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है कि पहले आपको मन के अंदर में जीतना पड़ेगा, तभी आप जाके फिजिकली जीत पाएंगे। तो अगर हमने आपको देखा तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जब हम इलीट कोचिंग की बात करते हैं। इलीट कोचिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला एस्पेक्ट आता है मेंटल। अगर भी हम थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे कोरियंस क्या कहते हैं। आर्चरी के गेम में 50% हम बोलेंगे मेंटल होता है, क्योंकि फिजिकल और टेक्निकल जितने भी हमारे टॉप आर्चर्स हैं, चाहे इंडिया के हों, चाहे वर्ल्ड ओवर हो, चाहे चाइना, कोरिया, जापान, इटली, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, जिधर का भी आप ले लिए, यूके, सभी के आर्चर, ऑल ऑफ देम आर इक्वली फिट physically, technically they are equally sound, but where the winner differentiates between the champion and the winner and the loser is only in the mind. They prepare their mind, and that is the reason if you look at our performance, we fail not because we are technically not good, not because we are physically not good, but because mentally we are not prepared. तो सबसे बड़ी बात जो आपके सामने आती है माइंड की, और इलीट कोचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे टॉप आर्चर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं नेशनल कैंप में, क्या हम ये ध्यान दे रहे हैं, क्या हम मानसिक में मेंटल प्रिपरेशन, मेंटल टफनेस पे ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बारे में हमने जब शुरुआत किया था ये पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का, आपको काफी कुछ बताया है। इसलिए आज का जो सेशन होगा ये टोटली टेक्निकल रहेगा। हम स्पोर्ट्स साइंस को समझेंगे, एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि अगर हम टॉप आर्चर्स को एनालाइज करते हैं तभी हम सीख पाएंगे कि क्या होता है। अब हम चलते हैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्चरी का। आर्चरी का गेम बेसिक फाउंडेशन जो होता है वो 10 स्टेप्स होते हैं, ये सब जानते हैं। बिगनर आर्चर से लेके अगर आप इलीट आर्चर
वो अपना जाएगा, स्टैंड करता है, पोजीशन करता है बो आर्म का, चेक ग्रिप चेक करता है, हुक चेक करता है, बो आर्म को रेज करता है, स्टार्ट करता है प्री ड्रॉ में, प्री ड्रॉ के बाद वो आता है, उसके बाद ट्रांसफर होल्डिंग स्टार्ट करता है, एंकर पे आता है, अलाइनमेंट देखता है, फाइनल एविंग देखता है, रिलीज करता है, चलते नहीं है। चाहे वो ओलंपिक में आप खेल रहे हो, चाहे वो आप अपना बिगनर आर्चर हो, चाहे फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो, ये नहीं चाहिए। बट 5 प्रिंसिपल्स क्या है, पहले उस पर ध्यान देते हैं। पहला प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट आपको जाना है कि आर्चरी एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला चीज है आप सीखते हैं कैसे 10 में मारना, और दूसरा स्टेप क्या है, उसको आपको रिपीट करना है। अगर हमारा कोई भी आर्चर ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, वर्ल्ड कप में अगर वो 10 मार सकता है, वो क्यों नहीं रिपीट कर पाता? इसलिए नहीं रिपीट कर पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, माइंड का सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में वो शॉट के बारे में नहीं सोचता है। अगर वो एनालाइज करेगा शॉट को मेंटली, तो उसको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट उसका वीक था, और नेक्स्ट शॉट को वो फर्दर इंप्रूव करेगा। अगर वो शॉट को इंप्रूव करेगा तभी जाके वो एक बार 10 मारेगा, दोबारा 10 मारेगा, दोबारा 10 मारेगा, क्योंकि उसको अपने को काम करना है, कंफर्टेबल रहना है, टाइट शॉट करना है, टाइमिंग शॉट करना है। इसके लिए ये सब जब अगर नहीं होता है तभी वो सेकंड शॉट रिपीट नहीं करता। बट अगर एक बार भी आर्चर 10 मारा, दैट मींस वो अगेन उसकी क्षमता है, वो फिर से दोबारा 10 मार सकता है। तो प्रिंसिपल नंबर 1, पहले आप ट्रेन जो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि कैसे आप 10 में तीर मारते हैं। टेक्निक को लर्न कर रहे हैं, उसको रिपीट करना है कंसिस्टेंटली। अगर गलत शूटिंग होगी, अगर कंसिस्टेंटली रिपीट करेंगे तो भी आप लगातार अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सेकंड प्रिंसिपल, अगर आप जानते हैं कि आप 10 मारना जान गए, सीख गए, आप इलीट लेवल पे आ गए, जहां पे आप 70 मीटर्स पे 320, 330, 340 का स्कोर कर रहे हैं, तो क्या आपको 3 प्रिंसिपल याद होना चाहिए। क्या करना है, दैट मीन्स आपको क्या चीज करना है, किस समय करना है, टीम इवेंट में, इंडिविजुअल इवेंट में, रैंकिंग राउंड में आपको क्या करना है, आपका शूटिंग टेक्निक क्या है जो आपको ऊपर लेके इंडियन टीम में लाया है और कल वो आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट टू डू। सेकंड, हाउ टू डू। अगर पता है हमें क्या करना है, पता है टाइट शॉट करना है, कैसे टाइट शॉट करना है, क्या आपको पता है कि कैसे टाइट शॉट करना है? दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो माइंड का जो सॉफ्टवेयर में हमें पता है कि फॉलो थ्रू अच्छा होना चाहिए, बट कैसे फॉलो थ्रू अच्छा होना चाहिए? तो व्हाट टू डू इज इंपॉर्टेंट, लेकिन कैसे करना है वो जरूरी है। वो आपके कोचेस सिखाते हैं कि कैसे करना है, वो सालों साल आप ट्रेन करते हैं। और थर्ड है व्हेन टू डू इट। तो ये 3 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको, जो बेसिक टॉप 10 जो आपके सीक्वेंस है वो आपको करना है, लेकिन कैसे करना है और कब करना है, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कंपटीशन में कर रहे होंगे। द थर्ड प्रिंसिपल है कि अगर आप शूट करते हैं, क्या आप प्रेजेंट में शूट कर रहे हैं? एक चीज याद रखिए, जब भी कोई आर्चर ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेता है, उसको प्रेजेंट में चलाना है। और प्रेजेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस क्या हुआ? माइंड। माइंड क्या हुआ? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या हुआ? टेक्निक। तो आपका जो टेक्निक है जिसके वजह से आपने 340 मारा, क्या उस टेक्निक को आप कंटिन्यूअसली रन करके आप प्रिपेयर्ड है मेंटली कि हम सेम टेक्निक से शूट करेंगे, प्रेजेंट में शूट करेंगे और प्रोसेस पे ध्यान देंगे, आउटकम पे नहीं। प्रेजेंट, प्रोसेस, थिंकिंग। प्रेजेंट में रहना है, प्रोसेस के बारे में सोचना है, तभी हम अपना 340 और उसके 350 तक मार के हम वापस में गोल्ड मेडल जीत पाएंगे। 2 चीज का ध्यान रखना है प्रोसेस में। बैक टेंशन जो हम बात करते हैं, जब हम एंकर पे आने के बाद जो बात करते हैं, कैसे हम अपने ट्रेपीजियस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके, कैसे स्केपुला बैठता है, उसके बाद ट्रेपीजियस को कॉन्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। दैट 1 मिलीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन, बिकॉज दोनों शोल्डर्स अलाइन रहने चाहिए, एंड 1 मिलीमीटर इज जस्ट एन एक्सपेंशन विच शुड हैपन। वही चीज आज पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है। बैक कॉन्ट्रैक्शन विच इज द बैक टेंशन, and expansion which happens the moment you are achieving your anchor position. Fourth position, biomechanically optimum posture. Friends, जितने भी टॉप आर्चर्स वर्ल्ड में हैं, उनको अगर अभी हम एनालाइज करेंगे और आप पाएंगे अगर वो बायोमैकेनिकली नहीं शूट कर रहे हैं, वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होंगे। कभी 335 मारेंगे, कभी 340 मारेंगे, कभी 342 मारेंगे, फिर वापस 338 मारेंगे। तो आप अगर आप देखेंगे
जब हमारे ट्रायल्स होते हैं इंडियन टीम के, सभी का कोई भी कंसिस्टेंट नहीं, उनका वेरिएशन होता है। कभी कभी कोई आर्चर में आप देखेंगे एक 320 मारा, अगले बार 330 मारा, इतना वेरिएशन हो रहा है क्यों? क्योंकि वो बायोमैकेनिकली शूट नहीं कर रहे। दूसरा, उनका पोस्चर बायोमैकेनिकली नहीं है। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है गेम में। स्टैंडिंग जो पोस्चर होता है, तो उसको बायोमैकेनिकली अगर आप मसल्स को यूज कर रहे हैं, बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं, बॉडी को कॉइल कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं, ड्रॉ लेंथ बढ़ रहा है, तब जाके कहीं आपको परफेक्ट आपका 10-10-10 लगातार लगेगा। और आप चाहे 1-to-1 मैच खेल रहे हो, चाहे टीम में इवेंट कर रहे हो, आप अगर बायोमैकेनिकली ऑप्टिमम पोस्चर में शूट करेंगे तो ट्रांसफर टू होल्डिंग जो होता है, जो आज हम बात करते हैं, जब एंकर पे आते आते हम कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं पावर को टू द बैक मसल्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम 60% टू 80। प्री ड्रॉ में 60 हुआ, एंकर पे 80 हुआ, फाइनल एमिंग पे आए 95 हुआ, उसके बाद जस्ट रिलीज कर रहे हैं। तो ट्रांसफर टू होल्डिंग सबसे अच्छा फैसिलिटेशन तभी होगा जब हम बायोमैकेनिकली शूट करेंगे। फिफ्थ जो है, बिल्डिंग योर ऑप्टिमल एंड मोस्ट रिपीटेबल होल्डिंग पोस्चर। देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपका होल्डिंग पोजीशन जो है, जब आप फाइनल होल्डिंग पोजीशन पे आए, इज इट बायोमैकेनिकली करेक्ट? इज इट द पोस्चर, इज इट बायोमैकेनिकल? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एंड में जब हम वीडियो एनालिसिस कर लेंगे टॉप आर्चर्स का, फिर हम आपसे बात करेंगे बायोमैकेनिक्स का, फिर हम बात करेंगे होल्डिंग पोस्चर का। क्या पोस्चर होना चाहिए बायोमैकेनिकली, कैसे बॉडी का एंगल बनता है जिसमें आप पीक शॉट करते हैं 10 आउट ऑफ 10, वो चीज के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट, जैसा हमने बोला, वापस आपको बताते हैं, इसको दोबारा हम रिपीट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, लर्न टू शूट अ 10। टेक्निक आनी चाहिए शूट ऑफ 10 की, जिसको आपको रिपीट करना है। सेकेंड प्रिंसिपल, पता होना चाहिए क्या करना है। ये अगर मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म को क्यों करना है, कैसे करना है और कब करना है। तीसरा, प्रेजेंट में रहना है, माइंड को प्रेजेंट में रखना है, ना फ्यूचर ना पास्ट। फ्यूचर एंड पास्ट आपको तुरंत आपको नेगेटिविज्म लाएगा, तो इसलिए प्रेजेंट में लाना है, प्रोसेस पे ध्यान देना है। चौथा प्रिंसिपल, बायोमैकेनिकली शूट करना है, पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, तभी आपका ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग ऑफ पावर होगा। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि जो ऑर्डर्ड सीक्वेंस में बॉडी एक्शन होने चाहिए, जो बेसिक 10 स्टेप्स है, स्मूथ ऑर्डरली फॉर्म में होगा, फ्लूलेस होगा, कंफर्टेबल होगा, और तब आप देखेंगे कितना अच्छा विद इन 10 सेकेंड्स आप शूट कर पाएंगे। और हम एनालिसिस जब करेंगे तब पता चलेगा। आइए चलते हैं कोरिया के बारे में। कोरिया 39 ओलंपिक मेडल्स सिंस 1984 जीत चुका है। ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए क्या करना होगा, अब हम एनालाइज करेंगे, वीडियो एनालिसिस देखेंगे। हमारे कीबो बे, जो लंदन में डबल ओलंपिक मेडलिस्ट थी, कुबो चन, जिन्होंने रियो में डबल ओलंपिक जीता, क्या करते हैं, ध्यान से इनको देखिएगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इनके शूटिंग फॉर्म को। चलते हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं, इनको स्लो फॉर्म में देखते हैं कि क्या उनका शूटिंग फॉर्म है। पहला स्टेप, नॉकिंग द बो। आपने एरो को नॉक किया, पोजीशन आपने देखा कितना ब्यूटीफुली शी इज टेकिंग द पोजीशन, ग्रिप अच्छा है। रीड्रॉ करना स्टार्ट किया इन्होंने, स्मूथ शॉट, स्मूथ ड्रॉ। लेकिन हेड मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, स्मूथ ड्रॉ, परफेक्ट एंगल पे आया, सेम कंट्रोल बैक प्रेशर में, देखिए बिल्कुल फिक्स हो गया पूरा बॉडी आउट। बिल्कुल जंप अच्छा था और परफेक्ट रिलीज। तो आप जब देख रहे हैं इनको, फिर से हम देखते हैं इनको दोबारा कि जब ये एंकर और रिलीज करती है कैसा लगता है। आप फेस का मोशन देखिए, परफेक्ट मोशन, नो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड आईज ऑन द टारगेट, गो हैंड स्ट्रांग, रिलीज एंड फॉलो द बैक प्रेशर। अब हम देखते हैं कुबोन चॉन को, जिन्होंने ओलंपिक जो मेडल 2 बार जीते थे, वो क्या करते हैं। एफर्टलेस ड्रॉ, नीचे से उन्होंने एंकर बैठाया, बैक टेंशन, रिलीज, आप हेड मूवमेंट देखिए परफेक्ट।
अब वो हैंड देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट वो हैंड, बिल्कुल पुश टू द टारगेट। वो जंप देखिए कितना स्मूथ वो जंप हो रहा है। ये हम वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, जहां पे आप कोई भी फेक नहीं कर रहा है। ये एक्चुअली परफॉर्मेंस देखिए कैसे रिस्ट उनका रिलैक्स कर रहा है, कैसे वो जंप कर रहा है। ब्यूटीफुली वो हैंड देखिए कितना ब्यूटीफुल अलाइनमेंट देखिए पीछे से। अब आप रिलीज देखिए, परफेक्ट हेड मूवमेंट देखिए। तो अगर आप देखते हैं ये कोरियन आर्चर्स को, अगर आप देखिए इसमें से कई चीज आपके सामने आता है। पहला चीज होता है बैक टेंशन। दोबारा आप देखते हैं कि बैक टेंशन कैसे ये करती है। 유명해진 것 같아요. पीछे का तो बैक मसल्स देखिए, 간단하게 말하자면 बैक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके जो कैसे बैक टेंशन इनका डेवलप कर रहा है। इनके टाइमिंग देखते हैं। 시작해서 웨이트 트레이닝까지 모든 게 다 갖춰져야지만이 그러한 자세가 나온다고. इनके जो टाइमिंग्स है दे आर नेवर अबव 10 सेकेंड्स। जनरली आप पाएंगे इनका 7 to 8 सेकेंड्स के अंदर में इनके शूटिंग हो जाते हैं। इनके शॉट्स का टाइटनेस देखिए, शॉट्स का स्मूथ, क्विक, टाइट शॉट्स। कुबोन को देखते हैं, वो है देखिए पुश टू द टारगेट। 조준기를 그 전에 이제 연습할 때 맞춰놓고 확실히 조준기 맞춰놨으면은 이제 그 후에 이제 슈팅 순간에 끝까지 조준하는 거를. वो का जंप देखिए, स्मूथ, फ्लॉलेस, वो हैंड फ्लॉलेस, 하나의 많이 टेंशन, टाइमिंग, नो हेड एंड बॉडी मूवमेंट एंड रिलीज। देखिए कुबोन का मूव का बस 경기할 때마다. परफेक्ट टाइट शॉट, परफेक्ट एंकर, रिलीज, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड पूरा। देखिए अभी भी पॉइंट देख रहा है एरो कि कहां पे लैंड कर रहा है, बिल्कुल फोकस्ड है। तो आपने देखा, अगर कोरियन आर्चर्स के 2 ओलंपिक मेडलिस्ट को आपने देखा, क्या आपने देखा? 1 दे आर यूजिंग बैक टेंशन, 2 उनका बो हैंड बहुत स्ट्रांग है, पुश टू द टारगेट है। और अगर आप रिलैक्स देखिए, वो जंप बिल्कुल परफेक्टली अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन जंप करता है, उनका रिस्ट रिलैक्स करता है। टाइमिंग दे आर वेरी परफेक्ट। किसी भी कोरियन आर्चर को किसी भी ओलंपिक में कहीं पे भी आप देखिए खेलते हुए, हम हमेशा वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक्स की बात करेंगे, क्योंकि वहां पे आप फेक नहीं कर सकते, वहां पे आपके पास प्रेशर है। उस प्रेशर सिचुएशन में भी कोई भी कोरियन आर्चर 8 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेता। आपने शूटनेस का टाइटनेस देखा, परफेक्ट स्मूथ ड्रॉ होता है, एंकर पे आता है, एंकर बिल्कुल परफेक्ट। एक मोमेंट ऑफ होल्डिंग टाइम होता है, कंप्लीट बॉडी स्टेशनरी दिखता है, और जस्ट एक्सपैंड करते हैं बैक टेंशन से, दे आर रिलीजिंग। हेड मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज ध्यान दीजिए। बहुत सारे हमारे कोचेस जो देखते हैं, हमने आर्चर को सिखाना शुरू करते हैं, वो बहुत सारे हेड मूवमेंट पहले भी होते हैं, बाद में भी होते हैं। आप देखिए टॉप आर्चर्स को, कोई हेड मूवमेंट नहीं रहता। दे ड्रॉ दी बोर स्ट्रिंग टू दी एंकर, कभी हेड को एंकर पे नहीं ले जाके, या रिलीज के बाद आप देखेंगे, और वेरी वेरी स्मूथ फॉलो थ्रू। तो दीज आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर आपको टॉप एथलीट्स को कोच कर रहे हैं, क्या आपके टॉप एथलीट्स में ये सब एलिमेंट्स हैं? अब चलते हैं, देखते हैं व्हाट ओ जिन हिक कहते हैं, आपके जो लंदन में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। 제가 가진 기술에서 저는 뭐 어깨나 이런 부분을 많이 신경을 쓰고 있기 때문에 그 부분에 대해서 좀 더 오늘 말씀을 드리려고 하고 있어요. 일단 보통 선수들이 자세가 많이 펴져 있는, 많이 이렇게 자세가 많이 뻗어 있는 그런 경우에 선수들이 많은데, 저 같은 경우는 남들보다 자세가 조금 기본기가 좀 부족할 수도 있기 때문에 자세의 외형보다는 저는 자세의 느낌을 많이 중요시하고 있기 때문에 자세의 힘이 양쪽 어깨를 어떻게 받치고 있는지, 어떻게 받쳐야 되는지 그런 부분을 제가 제 느낌대로 말씀을 드릴 거고요. 물론 어깨의 힘을 유지하고 있다는 것은 물론 활을 들었을 때 어깨의 힘을 꽉 잡고 있는 이런 외형적인 부분이 아니라, 힘을 이렇게 앞뒤팔 흐르듯이 양쪽으로 이렇게 흐르듯이 힘을 써주시는 게 그게 어깨를 받치고 있는 그런 힘이 유지가 되는 거거든요. 아무래도 한쪽 오른쪽만 당기고 있다 보면 왼쪽을 받치려고 하고 있지만, 오른쪽은 힘을 계속 쓰고 있기 때문에 왼쪽이 같이 무너질 수가 있겠죠. 그러니까 오른쪽을 쓸 때 왼쪽을 받치는 게 아니라 왼쪽 힘을 같이 양쪽 방향으로। तो आपने देखा कि जो हमारे ओलंपिक चैंपियन क्या बोल रहे थे, कि पहला चीज उन्होंने बताया कि उनका
फॉर्म टेक्निक अच्छा नहीं है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान देते हैं शोल्डर्स के ऊपर में। दोनों शोल्डर्स बराबर से मूव करते हैं, जब वो आते हैं पुश करके रखते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं अगर आप पुश करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, शोल्डर रेज होगा। शोल्डर रेज नहीं होना चाहिए रिकर्व आर्चरी में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे रिकर्व हो चाहे कंपाउंड हो, जो लेफ्ट शोल्डर है कैनॉट बी रेज, इट इज पुश टुवर्ड्स द टारगेट। तो जैसा कि पास्कल ने बताया था, आपके शोल्डर वो ब्लेड विल बी मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स किधर है, आप अपने ग्रिप से पिवट पॉइंट से जो पुश करते हैं उसको फोर्स बोलते हैं, तो आप फोर्स से पुश कर रहे हैं। तो यहीं पे स्पोर्ट्स साइंस आता है कि आप फोर्स लगा रहे हैं, एक पिवट पॉइंट पे डाल रहे हैं, और पिवट पॉइंट पे कहां होता है, एरो का लाइन होता है। तो एरो का लाइन और आपका पिवट एंगल बनाते हैं, इसीलिए उसमें कॉस थीटा और साइन थीटा से फोर्स को चेंज होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम पुश करके रखें टारगेट को। तो जितने भी कोरियन आर्चर्स को देखेंगे, दे पुश टुवर्ड्स द टारगेट, बिल्कुल अलाइन रहता है, शोल्डर पुश रहता है, डाउन रहता है शोल्डर, और वो दोनों शोल्डर को बोलते हैं बैलेंस करते हैं। तो वो पीछे से जब पुल भी कर रहे हैं तो उनके शोल्डर में बिल्कुल स्मूथ फ्लो वो बोलते हैं, दोनों में रहता है। और एक्सपेंशन जब होता है वो अपने आप, अगर उनका अलाइनमेंट भी देखिए, परफेक्ट अलाइनमेंट रहता है एल्बो का अलोंग द एरो लाइन, जिससे कि वो जस्ट अपना एक्सपैंड किए 1 मिलीमीटर, एंड एरो बिल्कुल वो जंप करेगा स्ट्रेट एंड इट गोज अलोंग द, आप देखेंगे 1 मिलीमीटर स्ट्रेट लाइन में जाके फिर वो 45 डिग्री एंगल में आपके हाथ मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रेडी एलिसन है, अभी तक आपने कोरिया का देखा, ठीक है, कोरिया आप बोल सकते हैं कि मे बी डिफरेंट। लेट अस सी कि ब्रेडी एलिसन जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट है वो क्या करते हैं। तो उनका स्लो मोशन में हम पिक्चर देखेंगे कि आप समझ पाएंगे। टेकअवेज क्या है, ड्रॉ देखिए, वो शुरू में क्या करते थे, उनका जो जैसे की शीट भी बताते हैं, और उन्होंने बताया हुआ कि जब रेडी करते हैं तो जल्दी 9 o'clock पे उनका एम रहता है, और वो अपने कोर को टर्न करके ड्रॉ करते हैं और लाते हैं अपना लाइन में। तो आपने देखा कितना आउटवर्ड करके फिर वो नीचे बैठाते हैं अपने एंकर पॉइंट पे और इन लाइन पे लाते हैं। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, कितना स्मूथ ड्रॉ है, एफर्टलेस ड्रॉ दिख रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ड्रॉ जो होते हैं एफर्टलेस होते हैं। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं एंकर पे, कि कैसे सॉलिड एंकर जो बोलते हैं, नो मूवमेंट एट रिलीज, वो देखिए कैसे करते हैं एंकर। रिलीज एंड वो जंप, दोनों को एक मिनिमम 1 तो 100% फोर्स आपका जो एफ थीटा होता है जाएगा। तो ये साइंस को बहुत जरूरी है हम सबको समझना। अब आप देखिए वो कोर के बारे में क्या करते हैं, जो हमने बात किया प्रिंसिपल नंबर 4 कि बॉडी का कोर, कोर क्या होता है, बॉडी को हिप से आते हैं, कैसे कॉइल करते हैं, पोस्चर में लाते हैं, बायोमैकेनिकल पोस्चर में ला रहे हैं, क्योंकि आप फ्री ड्रॉ के बाद आपका हॉरिजॉन्टल ड्राइंग होता है, वो बायोमैकेनिकल वे में है, कभी इंजरी नहीं होगा। देखिए क्या करते हैं ये कोर के बारे में। So when I start here and I come up here, my whole entire front side and target. And when I swing back, I'm actually twisting my core and just holding the shoulder in place. And that's what gives me probably 3/4 of my draws. My core is what draws most of my bow back. आपने देखा उन्होंने क्या चीज बोला, उन्होंने बोला कि जब भी ओपन स्टैंस आप करते हैं, राइट, ओपन स्टैंस के बाद हम देखते हैं कि जो हिप का है ऊपर वो कॉइल करते हैं, बोल्डर को वो बोलते हैं एंगुलर मूवमेंट जो लाते हैं, वो अपना 9 o'clock से वापस जब वो सेंटर पे लाते हैं, वो आपका शोल्डर एक्सपैंड करके आगे जाता है, पुश रहता है, टर्न करते हैं, बॉडी कॉइल होता है,
along the spine और उससे पावर बढ़ता है, और पावर जब बढ़ता है तो इसीलिए उनका ड्रॉ भी बढ़ता है। वो बोलते हैं नियरली 0.34 इंचेस उनका ड्रॉ बढ़ जाता है, क्योंकि वो बॉडी को कॉइल करके अलाइन करते हैं और लाइन में लाते हैं एरो और शोल्डर को, और उसके साथ साथ अपना एल्बो अलाइनमेंट को। तो दैट इज द कोर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोर, दैट इज द बायोमैकेनिकली वे ऑफ शूटिंग, पोस्चर, होल्डिंग, दैट हैज टू हैपन व्हेन द बॉडी इज टोटली कॉइल्ड। तो स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड होता है और फिर रिलैक्स करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम ब्रैडी एलिसन की फंडामेंटल्स की बात करें, क्यों वो आज 8 साल से लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते, लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। पहला चीज, क्लिकर हमेशा 1 मिलीमीटर पे रहता है, क्योंकि आपको एक्सपैंड करना है। अगर आपका 3 मिलीमीटर है, 4 मिलीमीटर है, इट इज रॉन्ग, ये आप गलत आप सिखा रहे हैं आप बच्चों को। क्योंकि आप अगर एक्सपेंशन, जब आपका, आपने मास्कर को सुना, एक्सपेंशन जो पूरा वर्ल्ड बोल रहा है कि जब आप एंकर पे, फुल एंकर पे आ गए, उसके बाद मूवमेंट नहीं होता है, उसके बाद इज जस्ट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बैक मसल विच इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज माइक्रो, आपको दिखेगा भी नहीं, बट दैट इज इंपॉर्टेंट। यू कैन ओनली हैपन इफ योर क्लिकर इज एट 1 मिलीमीटर। सेकेंड, एमिंग, उसके बाद वो फाइनल एमिंग करते हैं। दूसरा, एंकर पे आने के बाद उनका बॉडी देखिए, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, वो बोलते हैं मेरे बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है। अलाइनमेंट, एरो आप देखते हैं, एल्बो बिल्कुल अलाइंड होता है टारगेट से 1 मिलीमीटर बिहाइंड द एरो लाइन। कोर टाइट, टर्निंग फ्रॉम द हिप्स, आपका उनका पोजीशन, ओपन पोजीशन, हिप्स सेम लाएंगे, उसके बाद वो बॉडी को टर्न करके वो अपने पोजीशन पे आते हैं। तो इसलिए वेरी टाइट, कोई भी टेंशन बॉडी में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो बायोमैकेनिकली ड्रॉ कर रहे हैं, वो अपने कॉइल कर रहे हैं, हिप्स के बाद वो अपने शोल्डर को अलाइन कर रहे हैं और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम कर रहे हैं। जब तक आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं काम करेंगे, आपके शोल्डर इंजरीज होंगे और उसमें आप ज्यादा देर तक 4 साल शूट करेंगे, उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम्स आएगा। तो इंजरी को अगर हटाना है तो बायोमैकेनिकली शूट करना होगा। उसके बाद वो बोलते हैं, जब वो शॉट पे, एंकर पे आ जाते हैं, तब अभी हम दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, वो बोलते हैं कि हम, मेरा सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर जाता है। तो कीशिकली बोलते हैं कि टिल द पॉइंट ऑफ एंकर इट इज कॉन्शियस माइंड, आफ्टर एंकर टू रिलीज इट इज अ सबकॉन्शियस माइंड। यू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, वो सबकॉन्शियस माइंड आपको एक्सपेंड कराएगा, रिलीज करेगा, फॉलो थ्रू जाएगा। तो दैट हैपेंस इन द सबकॉन्शियस माइंड, एंड दैट इज व्हाट ब्रैडी एलिसन बोलते हैं। हम मेंटल में जब बात करेंगे तो देखेंगे। एक्सपेंशन, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं। आपने बो हैंड देखा कितना स्ट्रॉन्ग था, ड्रॉ स्मूथ, टाइमिंग विद इन 8 सेकेंड्स, मैक्सिमम 9 सेकेंड। जितने भी टॉप लेवल आर्चर्स ओलंपिक में, किसी भी कंट्री का आप ले लीजिए, अपने इंडिया का भी, जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारा शॉट हमेशा मैक्सिमम 8 to 10 सेकेंड में निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आज जो ओलंपिक की तैयारी आप कर रहे हैं, आपको शॉट वैसे भी 20 सेकंड में करना है, आप टीम इवेंट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 20 सेकंड में करना है, जब तक आपकी 10 सेकंड्स की आदत रही रहेगी। क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत बार विंड चल गया, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आप बो को लेट डाउन किए। एक बार अगर लेट डाउन कर गए, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बन जाता है। तो अगर टाइमिंग आपका परफेक्ट नहीं होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो क्या होगा? दोबारा उठा के आप मान नहीं पाएंगे। अगर 8 में गया, आप वहीं पे पूरा टीम का डिमोरलाइज हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान दे। बैक टेंशन, जैसा कीशिकली बोलते हैं, स्केपुला मूव करता है आपका, उसके बाद नीचे के अपर ट्रेपीजियस, लोअर, मिडिल एंड लोअर ट्रेपीजियस कॉन्ट्रैक्ट करता है। दैट इज द फीलिंग विच यू हैव टू जनरेट इन द सबकॉन्शियस माइंड। जब हम ट्रेन करते हैं, हर एक आर्चर जो वर्ल्ड लेवल पे खेल रहा है, उसको पता रहता है कि जब वो एंकर पे आएगा, उसका बैक का टाइट होता है, क्या बैक का टेंशन है जिसमें आपका 1 मिलीमीटर आया। योर फीलिंग ऑफ एंकर हैज टू बी फ्रॉम द बैक। जब आप बैक में वो फीलिंग ला पाते हैं कि अगर ये फीलिंग मेरी आ गई, ये टाइटनेस आ गया, ये मेरा जो डॉर्सी मसल्स, जो आपके उस मसल्स को ये प्रेशर पे फीलिंग है और मेरा 1 मिलीमीटर पे है, उसी फीलिंग को अगर आप रिपीट करेंगे, तब आप बोलते हैं कि फुली टाइट है, और उसमें आप एक्सपैंड करते हैं और बैक को कॉन्ट्रैक्ट किया और परफेक्ट शॉट होता है, रिलीज होता है, फॉलो थ्रू होता है। वो हैंड कभी भी मूव नहीं करेगा। जब हमने 10 के बाहर मारा है, आप देखिए, अपने से देखिए, एनालाइज कीजिए, आप पाएंगे कि लड़के का, आर्चर का, टॉप आर्चर का बो हैंड मूव कर गया है। जब भी, अभी हम आपको दिखाएंगे एंड में, इंडियन आर्चर का शूटिंग, जब उनका बो हैंड स्ट्रांग रहा है, टाइमिंग अच्छी रही है, एफर्टलेस शॉट किए हैं, कभी भी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में, कभी भी उन्होंने 10 के बाहर नहीं मारा। तो अब हम आते हैं कीशिक लॉ के शॉर्ट साइकिल पे। व्हाट डज ही से? बेसिक्स चेंज नहीं होता। आपने बो को, स्टैंडिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ग्रिप को चेक किया, हुक को चेक किया,
आपने बो को रेस किया, स्टार्ट किया, अब ये आते हैं सेटअप पे। ये सेटअप को क्या बोलते हैं? जब आप हिप्स के बाद एंगुलर मोशन में आप अगर आप 9 o'clock में एम कर रहे हो, वहां से आप जब चेंज करके अलाइन करते हैं सेंटर की तरफ, तो सेटअप में वो बोलते हैं कि 45 डिग्रीज पे हल्का सा आपके चिन के नीचे में आपका एंकर पोजीशन आता है, तो वो उसको बोलते हैं सेटअप। वहां पे 60% लोडिंग होता है, और उसके बाद वो जैसे ही वो एंकर पे आप देखेंगे बैठाएगा ब्रैडी एलिसन, वो हल्का सा मुश्किल से 5 to 7 मिलीमीटर आप या मैक्सिमम 1 इंच में वो लाके फिर वो बैठाता है अपने उस पे। वो जो होता है 80% आपका ट्रांसफर होना शुरू हो गया। और उसके बाद जब होता है, आप जब फाइनल 95% पे पहुंचते हैं, जब आपका फाइनल एमिंग आ गया, पूरा बॉडी जो बोलते हैं कि नाउ यू ऑन द पीक इक्विलिब्रियम, दैट मींस फ्रंट प्रेशर बराबर है, बैक प्रेशर बराबर है, मसल टेंशन बराबर है, एंकर पोजीशन सॉलिड आ गया 95% पे। दैट इज द पॉइंट ऑफ होल्डिंग, ही सेज। होल्डिंग इज नथिंग, इट्स अ टेम्पोररी phase in the entire sequence of cycle where everything is constant. That means your push, the pull, the back tension, the aiming is all synchronized at one moment. जो peak moment तो वहां पे टोटल ट्रांसफर ऑफ लोडिंग इज टू 95 से 100% होता है। वहीं पे वो बात करते हैं एक्सपेंशन, दैट मींस 1 मिलीमीटर एक्सपेंशन, जो शोल्डर एक्सपैंड कर रहे हैं 1 मिलीमीटर और बैक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 मिलीमीटर। तो ये जो मोशन बोलते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, 100% लोडिंग होता है, बायोमैकेनिकली शूट होता है, और तब एरो एक्स में लगता है। अब हम देखते हैं, जब हम एंगुलर मूवमेंट की बात करेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बो हैंड 9 o'clock से मूव करके वो सेंटर में आ रहा है। ऊपर का एरो देखिए, इधर में क्या हुआ, आप जब 45 डिग्री आप आते हैं 1 इंच बिलो दी चिन, और उसके बाद जब बैठाते हैं तो आपका एंगुलर मूवमेंट जो हो रहा है, आपका एल्बो मूव करता है। येलो लाइन देखिए, ये येलो लाइन मूव करके आपका पोजीशन में आता है, और इसको ही हम फाइनल पोजीशन बोलते हैं। अब आप देखिए जो ड्राइंग फोर्स और जो हम बात करते हैं, व्हाइट एरो जो देख रहे हैं, ये होता है आपका ड्राइंग, और ये येलो एरो जो देखते हैं वो एरो का लाइन आता है। तो जो ड्राइंग क्यों होता है, पुश जो कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ग्रिप से। ग्रिप से जब आप पुश करते हैं, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स। जब आप ड्रॉ स्ट्रिंग को ड्रॉ करते हैं, यू आर अगेन अप्लाइंग अ फोर्स इन द अदर डायरेक्शन। तो जो मोमेंटम होता है, जो फोर्स होता है, फोर्स इज 40 पाउंड व्हेन इट कम्स टू, जब आप पुश और एंकर पे पहुंचते हैं, तो ये जो व्हाइट लाइन है, दैट इज द फोर्स का लाइन। उसके बाद वो कॉस, जो एंगल देख रहे हैं, वो कॉस थीटा बनाता है, और एफ कॉस थीटा जो होता है, दैट इज द फोर्स विच गोज ऑन दी एरो लाइन। तो वो इंपॉर्टेंट बहुत चीज है कि दोनों कहां पे मैच करते हैं। आपके एंकर पोजीशन जब फाइनल एंकर पे आते हैं, फोर्स जो आपका एक्चुअल फोर्स आता है, उसको कॉस थीटा से वो करके आपका एफ कॉस थीटा का फोर्स एरो के लाइन में जाता है, और वो तब 100% होगा जब हम बोलते हैं बॉडी बिल्कुल जो बोलते हैं होल्डिंग पोजीशन, वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट सिंक्रोनाइज। उस समय जब आप रिलीज करते हैं तो 100% एफ कॉस थीटा का फोर्स से एरो जाता है। पुश करते हैं, जो लाइन में जाना चाहिए, बो का जंप लाइन में होगा, और रिलीज भी 1 to 2 मिलीमीटर गोज इन द सेम लाइन ऑफ द एरो, दैट इज नोन एज द 100% फोर्स जाएगा। अदरवाइज अगेन वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एफ कॉस थीटा साइन थीटा बना देगा। दैट मींस एफ कॉस थीटा जो फोर्स है, उसको फिर से हॉरिजॉन्टल में ब्रेक हो जाएगा, एफ कॉस थीटा का अगेन कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मूवमेंट अगर आप सेम लाइन में नहीं ले गए रिलीज को। तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है बायोमैकेनिक्स का, स्पोर्ट्स साइंस का। अगर ये एंगुलर मूवमेंट नहीं समझेंगे, ये एंगल कैसे बनता है, बॉडी का लाइन क्यों हम बोलते हैं एल्बो एक लाइन में होना चाहिए, क्योंकि तब 100% ऑफ द एफ कॉस थीटा इज द फोर्स बिहाइंड द शॉट। अब हम बात करते हैं जो ट्रांसफर और होल्डिंग क्या होता है। जब आपने पोजीशन किया, जब आप बो को पोजीशन करते हैं, जब हम बोलते हैं स्टैंडिंग, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पोजीशन। पोजीशन मतलब सेट क्या करना, ग्रिप को चेक करते हैं कि ग्रिप बिल्कुल परफेक्ट है, रिलैक्स्ड है, पुश्ड है, उसका पोजीशन चेक किया, हुक पोजीशन चेक करते हैं, दोनों को सेट किया, इसको बोलते हैं सेट करना। फिर आप सेटअप में जाते हैं, जब बो को उठा के एंगुलर मोशन से लाइन में लाते हैं येलो के, और ड्रॉ करते हैं टू 1 इंच प्रायर टू द चिन। तो वो आप ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में आप ड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर से आप भले ला रहे हैं, लेकिन फाइनली जब ड्रॉ करना शुरू करते हैं, दैट इज द टाइम दैट यू स्टार्ट कमिंग इनटू द बायोमैकेनिकल वे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आते हैं, और आप 60% ट्रांसफर आपका आ जाता है जब आप 1 इंच दूर रहते हैं आपके जो एंकर पोजीशन से। 60% लोडिंग आ गया सेटअप में। लोडिंग टू एंकर जो होता है, जब एंकर में आप आते हैं, जो नीचे से आप एंकर लाके सेट करते हैं, तो उसमें कभी भी आपको पेन नहीं आएगा बॉडी में अगर आप नीचे से एंकर लाके सेट करेंगे। तो उसमें आप देखते हैं एंकर 80% आ गया, और फाइनली जब फाइनल पोजीशन पे पहुंचते हैं, जब वो बोला
ब्रेड एलिसन ने कि अब हम एक बार मेरा एंकर आ गया, अब हम एमिंग जब स्टार्ट किए, दैट इज द टाइम दैट द ट्रांसफर इज बिकमिंग होल्ड में आप होल्डिंग पोजीशन पे आए, उस समय 90% आपका ट्रांसफर पावर कर चुका है बैक मसल्स पे। अब आप सिर्फ जो लेटिसमाई डॉर्सी होता है, जो माइनर होता है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एरो आपका निकल जाता है और शोल्डर्स एक्सपैंड करते हैं। तो देखते हैं, तो सबसे बैक टेंशन कोई ऐसा स्किल नहीं है जो सिर्फ कोरिया जानता है या यूएसए जानता है। आज इंडिया में भी अपने टॉप कोचेज आप देख लीजिए, चाहे वो पूर्णिमा हो, धर्मेंद्र हो, लोकेश हो, रिचपाल हो, जितने भी टिटमस हो, सभी आर्चर जो हमारे कोचेज हैं, सभी कोचेज को पता है बैक टेंशन क्या होता है। आज आप कंपाउंड ले या आप रिकर्व ले, सभी में जो मेरे टॉप 8 कोचेज हैं सबको पता है, लेकिन आर्चर को फील करना है। सबसे बड़ी बात है कि आप एक लेवल पे जब 340 शूट करते हैं, आपको फील करना है हाउ टू डू, व्हेन टू डू। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, हर एक शॉट में आपके माइंड में रिपीट करना है। तो ब्रिंगिंग द स्कैपुला, जो शोल्डर ब्लेड है, वो आपका आके बैठता है और उसके साथ साथ चेस्ट एक्सपैंड करता है और जो लोअर ट्रेपीजियस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो दैट इज द बैक टेंशन जो हमने दिखाया आपको। आगे फोटोग्राफ देखते हैं, यहां पे देखिए, ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ड्रॉ का उसका मोशन में आया, सेटअप, फिर आपका फाइनली अपना होल्डिंग पे आया। अब जब होल्डिंग पे आता है तो 95% आ गया, अलाइनमेंट वो का आ गया और उसके बाद उसका रिलीज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं स्कैपुला, रोम्बॉइड्स मसल्स, अपर ट्रेपीजियस, मिडिल एंड लोअर, तो ये चीज आपके बैक टेंशन में यूज होते हैं। तो ये मसल्स को आपको इंपॉर्टेंट है हर एक आर्चर को समझाना कि कैसे स्कैपुला बैठता है, कैसे हम रोम्बॉइड्स यूज करते हैं, कैसे मेरा लोअर ट्रेपीजियस फाइनल कॉन्ट्रैक्शन करता है जो 1 मिलीमीटर का है। ये देखिए पोजीशन, ये है रिकर्व बो का टॉप। अगर आप देखेंगे, अगर आपका इनएफिशिएंट है जब आपका राइट शोल्डर ब्लेड अंदर है, लेकिन राइट शोल्डर ब्लेड क्योंकि पूरा पावर लेता है तो इसको बैरल ऑफ द गन बोला जाता है, और इसलिए आपका जो राइट शोल्डर ब्लेड है वो हमेशा लेफ्ट शोल्डर ब्लेड से थोड़ा सा बाहर रहेगा, वो उसको बोलते हैं बैरल ऑफ द गन। यहां देखिए, आपको देख रहे हैं लेफ्ट शोल्डर कैसा है और राइट शोल्डर थोड़ा बाहर निकला, क्यों? क्योंकि पावर जो है जब स्कैपुला बैठता है, आपके वर्टिब्री की तरफ बैठता है और आपके डॉर्सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो दैट इज द पोजीशन आपका होता है। यहां देखिए स्केम स्कैपुला पोजीशन कैसे आपका ये चेंज कर रहा है। आप देख रहे हैं स्कैपुला बैठ रहा है, नीचे में जो मसल्स हैं वो डॉर्सी मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साथ साथ। गर्ल्स का भी देखिए कैसे हाउ द स्कैपुला इज मूविंग। यहाँ पे पाक जो है जो 119 पॉइंट्स मारे थे 120 में से, सी दैट उनका भी देखिए शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर से राइट में देखिए कैसे उनका थोड़ा सा, बिकॉज द पावर इज बिहाइंड द बैक टेंशन, इसलिए उनका थोड़ा सा उठा हुआ है। सेम पोजीशन आप देख रहे हैं ग्रीन डॉट, ये पोजीशन जब आपका हो रहा है ये पुश किया हुआ है, लेफ्ट इज पुशिंग टुवर्ड द टारगेट, वो आउट जाएगा, लेकिन राइट का जो स्कैपुला है वो वर्टिब्री की तरफ आ रहा है। तो एक्चुअली देखा जाए दोनों ही आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं जो वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द टारगेट एट द फैग एंड, और वहां पे ओनली एट द लास्ट मोमेंट जो डॉर्सी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के आप देख रहे हैं, ये होल्डिंग पोजीशन में देखिए जब फाइनल अलाइनमेंट आता है तो वो फाइनल अलाइनमेंट पे ही फाइनल ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग होता है। जब आपका कंप्लीट, जो ब्रैडी एलिसन बोलेगी कंप्लीट आ गया, या कोरियन आर्चर को देखिए जब उनका बैक का एल्बो अलाइनमेंट परफेक्ट आ गया, अलाइन ऑफ द एरो, दैट इज द पॉइंट व्हेन एवरीथिंग इज कांस्टेंट इन द बॉडी, बिकॉज दैट इज द पॉइंट दैट यू जस्ट एक्सपैंड, जो हाफ ब्रेथ है वो एक्सपैंड करता है। एंड माइंड यू, एक्सपेंशन जब होता है आपका ब्रीदिंग के साथ जब फॉलो थ्रू होता है, तो जो आपका एयर है बॉडी का हाफ वो निकलता है टिल द टाइम यू फिनिश द फॉलो थ्रू। हमेशा इसको ध्यान दीजिए, बहुत लोगों को ब्रीदिंग का टेक्निक नहीं पता है। मेरे आने वाले जो अभी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है गायत्री जी बताएंगी, और भी हमारे जो फिजिकल फिटनेस वाले वो लोग बताएंगे कि ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट है आर्चरी में। अब आ जाइए एक्सपेंशन पे। सर, yes, just 1 minute, sir. Vineet sir is here. He just wants to say something for a minute. Just 1 minute. Sure. Sorry to intervene. You take a breath, Sanjeev ji. You take a breath and have a glass of water. तो जब अपने पैशन में आ जाते हैं ना विनीत जी, I know. बात कर सकते हैं। Great rhythm, but Thank you Vineet ji, so kind of you. Yeah. I am here. I am here just to with the message of regional director Sri S.T. Sharma. I Ji. thought the right time to announce about the sports science program, because the Please strength do is that. maximum. Please do that. From everyone, all the participants in this program, that under the coach development program, there is a sports science lecture every day from 5 to 6 in the evening. So I'll request all the participants
do join that lecture. It is very important. It will be very supportive for you. Already there are more than 5,000 people who join that lecture. Even the parents, sports psychologists, physical educationists, teachers, school teachers, college lecturers, everyone joined that program. So you will also be likely to be maximum benefited out of it. So if you join the program, so I'll request you once again, all the participants, to join this program from 5 to 6. In the end, this lecture gets over, a slide will be displayed in which the ID of that program will be displayed. So I'll request Biswajit in the end to display that slide. Thank you very much. Please go ahead, Justin. Thank you, Vinitji. So may I request all the coaches, please join the 5 o'clock evening program of sports science, which is very beneficial for all the archers. Now coming to the expansion की जब हम बात करते हैं तो उसमें draw hand जो है should not move from the jaw. तो आप क्या बोलते हैं जब रेडियलिसन को देखिए या आप ह्यूनजिक को देखिए तो उन लोग क्या बोले हैं कि जब आप एंकर पे आ जाते हैं, there is no movement. That is the point when the jaw पे बिल्कुल solid एंकर आता है. आपके ट्राइसेप्स क्या है? पुश टारगेट में, अगर पुश टारगेट में तो ट्राइसेप फर्म होंगे. आपका जो लैंटू बोले जाते हैं, लैंटू मतलब क्या हुआ, जो एल्बो के बगल में जो मसल्स है ट्राइसेप्स के, वो जब आपको आएंगे तो उसमें आप फील करेंगे कि उसमें फर्मनेस रहेगा. ओपन चेस्ट क्या होता है, जब आप एक्सपेंड करते हैं, जब फुल एंकर पे आ गए, अब क्या कह रहे हैं, स्कैपुला में आपका पावर ट्रांसफर हो गया 80 से 95% और आपके जो डॉर्सी मसल्स आपके टाइट होने शुरू हुए तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बैक को. अब ये एक्सपैंड करता है, 1 मिलीमीटर ओनली एक्सपैंड की बात कर रहे हैं. तो दोनों शोल्डर जब एक्सपैंड करते हैं और आपका ब्रीथ धीमे से निकलता है और उसके साथ फॉलो थ्रू होता है, जो 45 डिग्री एंगल में आपका एल्बो पीछे मूव करता है, तो देयरफॉर बैलेंसिंग बोथ द लैंड टू, दैट मींस द ट्राइसेप्स और जो दोनों एल्बो के पीछे के मसल्स को बैलेंस करना, शोल्डर्स को बैलेंस करना, आपके मूवमेंट ऑफ द बो हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, movement of the release hand in the direction of the arrow, for again I am repeating, only for 1 millimeter to maximum 5 millimeter, because उसके बाद arrow निकल चुका है, वो आपका निकल गया, उसके बाद बो हैंड किधर भी जाता है, it will not matter, but that 1 to 5 millimeter movement along the line of the arrow, so that the force F cos theta is 100% moving the arrow right into the center, then only you get X. So please understand that science behind that. Holding, जैसा हमने बोला 1 मिलीमीटर एट द क्लिकर पॉइंट, तो आप ये राइट है 1 मिलीमीटर, इसमें देखिए 3 मिलीमीटर है, 3 से 4, तो आपको क्लिकर पोजीशन पे बहुत ध्यान देना है. इसलिए अब आते हैं जो ये कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस. तो अगर वो सेटअप का पोजीशन आप देखिए, सेटअप एंकर आते हैं और जब ट्रांसफर करते हैं होल्डिंग पे, आप जैसे 80 to 95 पे जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर करता है और वो जो 2 से 3 सेकंड का बस है. आप देखिए एंकर टू रिलीज should not be more than 2 to 3 seconds. That is where makes the difference. That is the subconscious mind which makes you expand, makes your muscles contract at the back and makes the bow hand move smoothly. Both the bow hand movement and the elbow both move with the line of the arrow, and thereafter they go on the एक left जाता है, दोनों left जाते हैं. So that is happening in the subconscious mind. Please teach your archers how to use the subconscious mind. अब हम आते हैं कि ये तो हो गया टेक्निक के बारे में. फ्रेंड्स, टेक्निक जरूर हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ जब हम ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं तो देखते हैं ओलंपिक की तैयारी क्यों हम माइंड को बोलते हैं ट्रेन करना. अब आप आते हैं हम आपका कोरिया को. कोरिया का आर्चर्स का सिस्टम देखिए, उनके पास एक टैलेंट पाइपलाइन डेवलपमेंट के लिए 131 आर्चरी क्लब्स हैं एलिमेंट्री स्कूल में. वहां से बच्चे 97 मिडिल स्कूल्स में जाते हैं, 50 हाई स्कूल में जाते हैं. वहां पे एडवांस अकेडमी है, लाइक किम ह्यूनटक अकेडमी है, जहां पे फॉरेन ट्रेनिंग होती है, साइंटिफिक ट्रेनिंग होती है मेंटल प्रिपरेशन के लिए, जो हम बताएंगे बाद में. उनका अगर आप देखेंगे कोचेस जो हैं वो हमेशा एक स्टाइल का कोचिंग करते हैं. देखिए क्या बोलते हैं जो उनके टॉप. 대학팀도 남녀가 한 30개 팀이 있습니다. 그래서 고등학교 진학을 해도 대학에 양궁팀에 갈 수가 있고 또 대학교 졸업해도 실업팀에 갈 수가 있고. जो ये है, इसीलिए हम लोग का जो भारतीय तीरंदाजी संघ ने ये कोचेस डेवलपमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण ने ये ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम बना रहे हैं कि हर एक कोच एक तरीके से शूट करे. बदलाव हो सकता है थोड़ा बहुत, आप में फर्क, आपका स्टाइल बदल, बट बेसिक साइंस नहीं भूलिए.
बायोमैकेनिकली मत भूलिए, प्रिंसिपल्स मत भूलिए, बेसिक 10 स्टेप मत भूलिए, मेंटल ट्रेनिंग मत भूलिए, वो सब कांस्टेंट रहेगा आपका। तो उनके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, बहुत सारे आरसी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, इंटरनेशनल नेशनल कॉम्पिटिशन लगातार होते हैं, स्पॉन्सरशिप और रिक्रूटमेंट है। अब हम देखते हैं, जब हम प्रिपरेशन ओलंपिक की बात करते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि आपका जो डिजाइन होना चाहिए फील्ड, जैसा आप देख रहे हैं प्लेग्राउंड, फिर आपका कंपटीशन एरिना, ऐसा आपको तैयार करना होगा बिफोर द कंपटीशन फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। अगर आप देखिए कैसे लोग एंटर करते हैं और कैसे ओलंपिक स्टेडिया है। आप देखिए कैसे वर्ल्ड आर्चरी उसको फील करता है, बिल बनाता है, एंट्री कैसे कर रहे हैं, कैसा आपका लाइन ऑफ प्ले है, वो आप देखिए दोनों आर्चर्स के अनाउंस होते हैं, कौन क्या खेल रहा है, तब वो शूट करने जाते हैं। तो अगर आपको चैंपियन बनना है तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप माइंड में, अगर एक तो टेस्ट ओलंपिक में आपने जब गए थे टोक्यो, आपने पिक्चर किया पूरा कैसा माइंड में है, कैसे खड़े होना है, कैसे एंट्री करना है, वो चीज को आपको मेंटल ट्रेनिंग कराना होगा हर एक आर्चर को, कि उसको अपने माइंड में देखे। वहां पे टॉप आर्चर बेडी एलिसन के साथ फाइट करते हुए वहां पे देखेगा अपने टॉप कोरियन आर्चर से, और उसको जीतते हुए देखे। जब तक माइंड के अंदर वो फील्ड को कंजोर नहीं करेगा, वो मोशंस को, क्लाउड का चीयरिंग को, और उसका अपना अनाउंस होते हुए बोलते हुए 9 जा रहा है, 10 जा रहा है, हमेशा 10 जा रहा है, अपना नाम सुने अपने माइंड में, और उसके बाद जब वो ट्रेन करता है तभी जाके वो जब ओलंपिक में जाएगा कोई भी उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि माइंड ने ऑलरेडी हजारों बार अपने माइंड में वो मेडल जीत चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं आज वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या होता है। वहां पे भी देखेंगे आप लोग एंटर कर, देखिए चाइनीज टीम एंटर करते हुए, अनाउंस करते हुए कि गोल्ड मेडल मैच होने जा रहा है। Well, China lead us out. They've got two 18-year-olds, Wei Xiao Shuai. में बताया जा रहा है कि कौन आर्चर्स है, क्या तो दैट मींस मेंटल माइंड के ऊपर में आपके प्रेशर आना शुरू हो गया। इसके बारे में बताया जा रहा है कि गोल्ड मेडल मैच है, आपका नाम क्या है। Well, they're going to get presented out to the crowd. I'm also going to ask you one question. देखिए आपके नीचे से आप क्या आता है, तो ये सब टीवी से आ रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, फैनफेयर है। You know what? I think I would have predicted maybe Korea versus Netherlands in the gold medal, but the interesting thing about this match is both countries were very dominant maybe about 10 years ago, and now both countries are actually starting to get much better in the अब इंडिया टीम एंटर किया, तो आपको मेंटली अब ट्रेन करना होगा कि कैसे आप गोल्ड मेडल में पहुंचे, आप एंटर कर रहे हैं, आपका अनाउंस हो रहा है, आपने गोल को रखा है, आप उसके बाद आगे खड़े होते हैं, फिर नाम अनाउंस हुआ, आपका नाम, आप फिर आगे बढ़ते हैं, सलूट करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आप ट्रेन करते हैं, फिर शूटिंग का स्टार्ट होता है। Then the 22-year-old Pravin Ramesh Yadav and Atanu Das, the 27-year-old. Representing India. आपने देखा कि आर्चर्स को इसी तरह से मेंटली ट्रेन करना है। आपके नेशनल कॉम्पिटिशंस ऐसे होने चाहिए, सिलेक्शन ट्रायल्स के फाइनल में ऐसी मैच करिए। जब तक वो प्रेशर आप बिल्ड नहीं करेंगे, फैनफेयर नहीं बिल्ड करेंगे, तब तक नहीं होगा। अब देखते हैं वर्ल्ड कप में, वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी सेम सिचुएशन है, चाहे वर्ल्ड कप ओलंपिक में हो, लोग जा रहे हैं, सेटअप बना हुआ है, this should be a great match. It is a gold medal match, all gold medal match. चलते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो आप ये मान के चलना होगा हर एक को कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हम एक्सपर्ट नहीं है, मेरे पास हमें हेल्प चाहिए होगा। तो अगर ये कोच सोचता है, कोई भी एलीट कोच, कि नहीं हम तो सर्वे सर्वाएं, तो बिल्कुल गलत है। उसको पूरा हमेशा एक टीम को लेके चलना है। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं, पूरी टीम चलती है। आप अगर टीवी कमेंट्री आता है, आपको तुरंत एनालिसिस मिल जाता है कि अगर इसने 50 मारा, 100 मारा, कितना मिड ऑफ है, कितना मिड ऑन है, किस एंगल पे है, किस स्पीड पे है। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास वीडियो एनालिस्ट होंगे, डेटा एनालिस्ट होगा, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट होगा, न्यूट्रिशनिस्ट होगा, मैस्योर होगा, फिजियोथेरेपिस्ट होगा, योगा एक्सपर्ट होगा, फिजिकल ट्रेनर होगा।
मेंटल ट्रेनर्स होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, तो आपकी टीम तभी कंप्लीट होगी। आप अगर ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, इन सब को साथ लेके चलना होगा और इनको ड्यू रिस्पेक्ट देना होगा। कोचेस का हमने बहुत बार देखा है कि जब वो सपोर्ट स्टाफ आते हैं वो सोचते हैं ये कोई नहीं है, ये तो जस्ट हमें हेल्प करने हैं। नहीं, उनका भी उतना ही रोल है। आप टेक्निक डेवलप कर रहे हैं, लेकिन मेंटल ट्रेनिंग उतनी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ट्रेनिंग उतनी इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन उतने इंपॉर्टेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट आपको उतने इंपॉर्टेंट है, मैस्योर उतने इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनिस्ट उतने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपका न्यूट्रिशन नहीं होगा, बैलेंस डाइट नहीं होगा, आपकी एनर्जी नहीं होगी, तो आप क्या शूट करेंगे? फिजिकली आपके पास स्ट्रेंथ शुड बी मोर देन व्हाट यू आर गोइंग टू शूट। तो आपके एंड्योरेंस, आपके स्टेमिना, वो सबको कौन डेवलप करेगा? आपका मेडिटेशन कौन डेवलप करेगा? यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ योगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि अगर पेन है, वो बताएगा कि उस समय क्या करना है। आपके परफॉर्मेंस, जैसा कि हमने वीडियो एनालिसिस किया, आप पर अब क्या अपना वीडियो एनालिस्ट है जो बैठ के आपके टोटल एरोस 340 मारा, उसको मैप किया, किधर किधर आपका गया, कितने बार 3 o'clock 10 लगा, कितने बार 12 o'clock 10 लगा, क्यों गया? क्या आप माइंड में वीडियो प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्यों गया एरो, क्यों एरो अगर 9 गया? तो जब तक आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की मदद से आप अपने पूरे बैलेंस ऑफ द बॉडी को ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं कर सकते। तो आपको ये रियलाइज करना होगा कि अगर टीम इनकम्प्लीट है सिर्फ अगर कोच और आर्चर है, नहीं, इलीट लेवल पे आपको कंप्लीट टीम को लेके चलना होगा। और इसीलिए टॉप प्रोग्राम में भारतीय खेल प्राधिकरण आपको पैसा देती है कि आप अपना मेंटल ट्रेनर रखिए, पैसा देती है कि आप योगा एक्सपर्ट रखिए, फिजियोथेरेपिस्ट रखिए, न्यूट्रिशनिस्ट रखिए, लेकिन वो पैसा आपको यूज करेंगे। अगर आप वो टॉप के पैसे को यूज करेंगे तो आपको करोड़पति बन जाएंगे जब मेडल आप लाएंगे। तो ये मत सोचिए वो पैसे को संभालना है, वो पैसा आपको ओलंपिक के ट्रेनिंग के लिए दी जा रही है। तो काइंडली यूज दैट मनी जो भारतीय खेल प्राधिकरण दे रही है फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर ओन पोटेंशियल बाय हायरिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड हु विल हेल्प यू। Respect them. If you respect them, they will respect you. You will become a bigger archer. लेकिन अगर आपका मेंटल एटीट्यूड होगा, अरे हम तो बेस्ट है इंडिया के, तब फिर आप कभी भी ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाएंगे। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गुरुजनों को आपको रिस्पेक्ट करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं, ये मान के चलिए आप कभी भी ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना कि हम नहीं है। हम मत बोलिए, आप बोलिए टीम बोलिए, हम मत बोलिए। अगर आप हम बोलते हैं तो आपके पास अंदर ईगो आता है, ईगो आपको नीचे ले जाएगा। तो डोंट गो फॉर द ईगो। कोच को ये बहुत जरूरी है अपने आर्चर्स को, जैसे वो राइज कर रहे हैं, उनको ये सिखाना कि वो कभी भी कंप्लीट नहीं है बिना टीम के। अब हम चलते हैं कोरियन टीम को देखते हैं, वो साइंटिफिक ट्रेनिंग के बारे में उनकी जो टॉप आर्चर क्या बोल रही है, वो कैसे बता रही है। और खुद आपने जो वर्ल्ड ओलंपिक मेडलिस्ट को देखा बात करते हैं, वो कैसे वो मेंटल ट्रेन करती है, विजुअलाइज करती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए जो कोरियंस करते हैं, वो उनका जो नेशनल कोच टीम को तैयार करने के लिए 야구장에서 많은 관중들이 있을 때 그 함성 속에서도 올림픽 똑같이 올림픽에도 막 함성이죠. 그런 속에서도 긴장을 하지 않고 훈련할 수 있는 그런 훈련. तो आपने देखा कि वो उन्होंने हमेशा वो कॉम्पिटिशन्स को इम्युलेट करते हैं, वो सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं कि वो बेसबॉल स्टेडियम में अलग जगह पे फैन फेयर के साथ उनको ट्रेन कराते हैं नेशनल में, जिससे कि तब जाके वो आज तक लगातार मेडल जीतते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है उनका जो पिरामिड स्ट्रक्चर है, जहां पे उनके जो एक टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अगर आप देखेंगे वो मोर देन 4000 शॉट्स चलाते हैं एक ट्रायल के अंदर में। बोला कि आज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने देखा कि 4000 एरोस चला रहे एक सिंगल इंडियन एक सिलेक्शन ट्रायल में, और उनके जो पूरे महीना लगता है वो एक ट्रायल्स में उन लोग को उतना चलाना पड़ता है। साथ ही साथ आपने देखा पिरामिड स्ट्रक्चर मींस हाई स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कंटिन्यूअस एक पिरामिड स्ट्रक्चर है। तो सबसे टॉप आर्चर निकलते हैं और उन्होंने 50% उन्होंने मेंटल पे फोकस करते हैं, सिमुलेट करते हैं कंडीशन बेसबॉल स्टेडियम में, फैन फेयर में, तब कहीं जाके उनके जो आर्चर्स होते हैं इतने स्ट्रांग होते हैं कि कंपटीशन में भी उनका शूटिंग स्टाइल देखिएगा एग्जैक्टली सेम रहता है जैसे कि कंपटीशन में रहता है। अब हम देखते हैं कि ब्रैडी एलिसन क्या बोलते हैं मेंटल ट्रेनिंग के बारे में।
The thing that I really try to focus on the most during that shot execution is actually the feeling of my body. Really trying to let my subconscious take over everything about that part of the shot. And the reason I do this is because I don't want to consciously think about anything that I have to do during that part. I want my subconscious to take it over. And with my subconscious taking it over, what happens is my subconscious can make small adjustments as my clicker goes off as I shoot to put the arrow towards the middle. So, you know, my release won't look the same every time. My bow arm won't look the same all the time. And for me, that's okay. I actually want that to happen because that's my subconscious actually making the adjustments to my shot that it needs to put the arrows towards the middle. तो आपने देखा ब्रेडी विल्सन कैसे वो बोलते हैं कि जो मेन जब बिफोर दे कम टू एंकर आने के बाद कैसे उनका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है जिससे कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। पीक परफॉर्मेंस लगातार 8-9 साल से वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब आते हैं बायोमैकेनिक्स के बारे में। अभी तक आपने देखा वीडियो एनालिसिस के जरिए हमने कोशिश किया आपको बताने के लिए कि माइंड कितना इंपॉर्टेंट है, मेंटल ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन के लिए आपको उसी सिचुएशन में जैसे आपने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगे उसी तरीके से एंट्री करना, नाम बुलाना, वीडियो स्क्रीन पे आना, वो इंपॉर्टेंट है। आपने हमने शूटिंग फॉर्म देखा कोरिया एंड उसके आर्चर्स का कि क्या उनका बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। तो अब हम बायोमैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला चीज है जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी सामान अगर कोई चीज रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहता है जब तक फोर्स नहीं लगता। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। जब आप मोशन होता है, बो मोशन आप देखिए, जब बो मोशन होता है तो आपका एरोज अगर आप देखेंगे और आपका एरो जब होता है, जब चलता है, जब आप छोड़ते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट करता है। तो जब आप क्यों इसलिए गिरता है तो वो क्या होता है, फोर्स की वजह से वो तीर एरो को काटता है जो विंड को, लेकिन विंड को जब काटता है तो विंड एक ड्रैग बनाता है जिसे फ्रिक्शन बोलते हैं। वो फ्रिक्शन की वजह से वो एक बार जाके गिर जाता है। तो फोर्स को अपोज क्या कर रहा है, फ्रिक्शन ऑफ द एयर, जिसके वजह से इसीलिए एरोडायनेमिक बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं स्पिन विंग लगाइए, क्योंकि स्पिन विंग क्या करता है, एरो को डायनेमिकली कट करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, टाइमिंग बढ़ता है स्पीड का, इसलिए वो क्या होता है, ज्यादा टेंडेंसी रहेगी ग्रुपिंग करने की। दूसरा लॉ क्या बोलता है, फोर्स जो होता है जब लगता है तो बॉडी में मोशन होते हैं। तो जब आप देखेंगे क्यों हम बोलते हैं स्टेबलाइजर लगाते हैं, क्योंकि जब छोड़ते हैं तीर को तो क्या होता है कि एरो में कंपन आता है पूरे बो में, वो मोमेंटम के हिसाब से आगे जाता है। तो स्लिंग्स के वो रुकता है क्योंकि मोमेंटम से जो जाता है वो स्लिंग से लड़के रुक जाता है। अब क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम बोलते हैं 40 पाउंड का बो है, तो वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अगर 40 पाउंड का बो है, 28 इंची ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपने जब बो को किया तो वो फोर्स जो हुआ उसमें जो स्टोर हुआ उसको 40 into 28 इतना फोर्स आपका स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। और जब आप एरो को रिलीज करते हैं तो क्या होता है, ये फोर्स किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। और अगर वेट ऑफ द बो अगर सपोज 0.25 lb है तो अगर उसको डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेंगे तो रफली 67 फीट पर सेकंड के हिसाब से वो एरो निकलता है। तो ये डायनेमिक्स आपको समझना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यूज करते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर फोर्स जब होता है, एक दूसरे से कोई चीज दो फोर्स लड़ते हैं तो एक अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं। तो जब आप देखते हैं कि जब बो को पुल करते हैं, स्ट्रेस करके जब आप छोड़ते हैं, जब किनेटिक एनर्जी आता है तो बो के मोमेंटम से वो आगे जाता है। जब आगे जाता है तो स्लिंग उसको रोकता है। तो वो क्या हो रहा है, फोर्स से आगे जा रहा है लेकिन स्लिंग अपोजिट डायरेक्शन में रोक के उसको रोकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोशन जो होना चाहिए वो कम से कम 5 मीटर, इतना टाइट मत स्लिंग बनाइए कि 5 मिलीमीटर वो आगे मूव नहीं कर पाए। कम से कम 1 इंच का गैप होना चाहिए जिससे कि बो को फ्रीली मूव कर पाए। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब ग्रिप आप करते हैं 45 डिग्रीज पे करिए, आपका एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, नकल 45 डिग्रीज पे रहना चाहिए कि पुश कांस्टेंट होगा और जितना अच्छा पिवट पॉइंट बनेगा उतना अच्छा फोर्स आप लगा पाएंगे। अब आते हैं ये फोर्स की बात करते हैं। आपने बहुत बार ये देखिए आपके सामने टारगेट है। फोर्स क्या है, जब आपने रिलीज किया तो जो आपका फोर्स जनरेट हो रहा है जो ग्रिप से और आपके रिलीज में, वो एफ कॉस थीटा से कन्वर्ट होके वो फोर्स लगता है एरो में और एरो जाता है सेंटर में। अब आप सोचिए अगर इसको जो लाइन फोर्स है उसका अगर हम लाइन हम चेंज कर देते हैं, बहुत लोग एंकर पे आने के बाद अगर मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है, ये जो एफ कॉस थीटा है उसका फर्दर एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे एफ कॉस थीटा कॉस थीटा। तो उस वजह से फोर्स जो होगा 100% नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, द मोमेंट लाइन चेंज होगा, आपका एरो 9 o'clock या 3 o'clock जाएगा
या ऊपर में नीचे में 6 o'clock 9 जाएगा और 12 o'clock जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप एंकर पे कैसे अपना एल्बो को चेंज करते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फोर्स को समझना। अगर कोच समझ ही नहीं पाएगा कि क्या डायनामिक्स है फोर्स का, कैसे वो एक्ट करता है, कैसे एंगल चेंज करता है, वो कैसे बढ़ेगा। अब ये देखिए बायोमैकेनिक्स में जो मसल्स है, मसल्स कौन से, रोम्बॉइड्स यूज कर रहे हैं, स्कैपुला यूज कर रहे हैं, ट्रेपीजियस कर रहे हैं, डेल्टॉइड्स कर रहे हैं, लेटिस डॉर्सी कर रहे हैं। तो ये चीज इसमें दिखाया हुआ है कि जब आप बैक प्रेशर को करते हैं तो कैसे आपका डेल्टॉइड्स मूव करता है, कैसे स्कैपुला मूव करता है, कैसे जो लेटिस डॉर्सी मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखते हैं कभी भी बायोमैकेनिकली, अब आप देखिए कितने एंगल बन रहे हैं। आपका एक अपर आर्म का एंगल है और फोर आर्म का एंगल है, एक आपका शोल्डर का एंगल है, एक आपका एरोलाइन का एंगल है, एक एरोलाइन में और बो लाइन में एंगल है। तो इस तरह से 5 एंगल बनाता है। और ये एंगल क्यों हो रहा है? फोर्स की वजह से हो रहा है। और ये फोर्स क्या करता है आपके में, अगर ये लाइन ऑफ फोर्स देखिए, अगर यहाँ पे है एरोलाइन है, अब बहुत ज्यादा अगर फोरआर्म ऊपर होगा वो भी एंगल बना रहा है। तो फोर्स जितने भी होंगे, फोर्स डिवाइड होने लगते हैं। जितने एंगल बनेंगे फोर्स डिवाइड होंगे, और जितना फोर्स डिवाइड होगा पावर बिहाइंड द शॉट कम होने लगता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये देखिए आपके एंगल्स में, जब आप कॉस थीटा और साइन थीटा से कैसे एंगल चेंज हो रहे हैं, कैसे फोर्स कम हो रहे हैं, कैसे बॉडी के ऊपर भी कंप्रेसिव रिएक्शन लग रहा है, क्योंकि आप पुश कर रहे हैं, आप पुल कर रहे हैं, तो दोनों में आपका फोर्स लग रहा है, बॉडी की मस्कुलर पावर आप दे रहे हैं। तो वो आप याद कीजिए, मस्कुलर पावर स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में वो आपका कन्वर्ट होता है किनेटिक में, और किनेटिक एनर्जी के बाद से वो रिलीज होके जाता है। तो इस तरह से एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं वो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट में बैक टेंशन के ऊपर में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है जो हमने आपको पहले बताया, प्रिंसिपल नंबर 5, होल्डिंग पोजीशन। होल्डिंग में चाहे वो कंपाउंड हो चाहे रिकर्व हो, जो लेफ्ट शोल्डर है हमेशा डाउन होना चाहिए, पुश टुवर्ड द टारगेट रहना चाहिए, रेज नहीं होना चाहिए। आपने ओजिन क्विक को देखा बोलते हुए कि हम दोनों शोल्डर को करते हैं, लेकिन अगर हम प्रेशर नहीं करेंगे तो क्या होगा, शोल्डर राइज कर जाता है। तो ये पहला प्रिंसिपल है कि स्टेज 1 में कि जब आप बो को सेटअप करते हैं, आपका शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर पोजीशन नॉर्मल पोजीशन पे होना चाहिए। तो बेस्ट तरीके क्या है, तो बेस्ट वे टू एंश्योर दैट योर बो शोल्डर इज डाउन फॉर होल्डिंग इज नेवर लेट इट राइज, सिंपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज 2 में अब आप एंगल देखना शुरू कीजिए। जब हम बायोमैकेनिकली बोलते हैं कैसे मेरा मूव करता है, तो ड्रॉइंग शोल्डर देखिए। टू प्रिपेयर योर ड्रॉइंग शोल्डर फॉर इंजरी फ्री लोडिंग, ड्रॉ इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया। अभी जो बताया गया है, साइंस बोल रहा है कि अगर बायोमैकेनिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर आपका एंगल बनाते हैं तो उसमें कभी भी इंजरी नहीं आती। और जैसे कि आपने देखा था, ये पोजीशन था ब्रैडी एलिसन का। जब शुरू करता है तो वो क्या करता है, उसका 9 o'clock साइड, आप जो देख रहे हैं 9 o'clock, जो पीला पोर्शन है वहां पे एम में आना है, लेकिन शुरू में रिकर्व आर्चेस का 9 o'clock की तरफ रहता है। अब वो जब एंगल बना रहा है, हिप्स को सॉलिड करके टर्न करना, ड्रॉइंग शोल्डर्स टर्न करना शुरू करते हैं, ये एंगल बदलना शुरू होता है। अब आप यहाँ देखिए शोल्डर लाइन रोटेशन। तो अब आप, ये शोल्डर लाइन है जो रेड कलर का, ये रोटेट करना शुरू किया, ये लाइन में आना शुरू किया, आपने बो को रेज किया, अब ये शोल्डर को लाइन में ला रहे हैं। तो इसको बोलते हैं बायोमैकेनिकली शोल्डर को रोटेट करके लाइन में लाना, हॉरिजॉन्टल। अगेन रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल लाइन में लाएंगे, परफेक्ट आपका आएगा, कभी इंजरी नहीं आएगी। स्टेज 3 जो रोटेशन किया, अब आप एंगल देख रहे हैं, आपके जो ब्लू डॉट्स हैं, रेड डॉट्स हैं, ये सब एंगल बनाना शुरू किए। तो ये अब आप फोर्सेज आ रहे हैं, प्ले कर रहा है। तो क्या होता है, जब बॉडी चेंज करता है, एंगल एक्सपैंड करता है, तो लेफ्ट शोल्डर का एंगल एक्सपैंड करेगा, राइट शोल्डर का एंगल एक्सपैंड कर रहा है। ये जो एंगल्स बना रहे हैं ये सब देखिए एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। और मिड ड्रॉप पोजीशन, जो सेटअप पोजीशन पे आप आते हैं, तो ये पोजीशन सेटअप का है, जहां से आप एंकर नीचे से लाके आप बैठाते हैं। ये सेटअप पोजीशन आ गया। स्ट्रॉन्ग स्टेबल शोल्डर, हिप्स सेम है, लेकिन बॉडी रोटेट कर रहा है और रोटेट करके एंगल चेंज कर रहा है। यहां देखिए, अब आप आगे होल्डिंग पोजीशन, ये रिकर्व का आइडियल पोजीशन होता है। ये आप देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे तो आपका देखिए एल्बो लाइन पूरा ब्लू से है, आपका हल्का सा शोल्डर बाहर निकला हुआ है क्योंकि बैक प्रेशर है, वो टेंस किया हुआ है, तो शोल्डर अलाइन हुआ। एल्बो लाइन देखिए, एल्बो लाइन जो आपका है वो एरो लाइन येलो, वो बिल्कुल एक लाइन में है। 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर लेफ्ट हैंड रहेगा चलेगा, बट अगर ये लाइन अगर ऐसा रहेगा तो फोर्स न्यूटन्स लॉ बोलता है 100% एफ कॉस थीटा जो है वो फोर्स है, वो कंप्लीटली आपके एरो को डेड सेंटर में ले जाएगा। तो आपको बायोमैकेनिकली समझना पड़ेगा कि जब हम बोलते हैं एल्बो अलाइनमेंट, यही सी को हम एल्बो अलाइनमेंट बोलते हैं रिकर्व में। अब आते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड में क्या होता है, वहां पे क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज होता है, वो का पाउंडेज कम होता है,
आप मैकेनिकल रिलीज यूज करते हैं तो वहां पे शोल्डर आपका पीछे में नहीं आता उतना प्रेशर जितना रिकर्व 40 पाउंड खींचता है, जहां पे कंपाउंड आर्चर उसका कम खींचते हैं, 35-30 खींचते हैं, तो उनका जो पोजीशन में शोल्डर हमेशा स्ट्रेट रहता है। बट एरोलाइन देखिए सेम है, एरोलाइन नहीं चेंज करेगा। और इसीलिए बोलते हैं कि वहां पे क्या होता है कि आपका क्योंकि मैकेनिकल रिलीज होता है, जब आप एरोलाइन पे एंकर पे आते हैं, जब ये प्रेशर को जनरेट करते हैं तो अपने आप टेंशन जो रहता है उससे आप बिना दबाए हुए वो रिलीज होना चाहिए ऑटोमेटिकली। ये पोजीशन होता है होल्डिंग पोजीशन कंपाउंड का। अब हम बैक टेंशन डायनेमिक देखते हैं। अब आपको बोलते हैं बैक टेंशन क्या होता है। यहाँ पे एंगल देखिए, बायोमैकेनिकली हमने इसको दर्शाया हुआ है कि ये पोजीशन है आपका रिकर्व आर्चर का। ये आप येलो लाइन देखिए कैसे शोल्डर मूव कर रहा है। जब ये जो येलो लाइन बताता है कि जो आपका बैक के मसल्स हैं वो माइक्रो मूवमेंट है, आप ये मान के चलिए वो आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप को ये इकोकार्डियोग्राम के थ्रू आप उसके नर्व्स को नहीं चेक करेंगे, मूवमेंट देखेंगे। 1 मिलीमीटर की मूवमेंट होती है जो कि आपका जब शोल्डर ब्लेड बैठते हैं, स्कैपुला बैठता है, जो डॉर्सी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो शोल्डर का एंगल देख रहे हैं ये एक्सपैंड करता है। जो 2 है वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये शोल्डर का लाइन एक्सपैंड करेगा। ये फिक्स हो जाता है आपका लाइन जो बैरल ऑफ द गन में, तो ये रिकर्व में ये मूव करके वो फाइनली क्या होता है थोड़ा सा मूव करके पीछे आता है बनस्पत एसबी और एसएच। एसबी इज द बो हैंड शोल्डर, एसएच इज द एल्बो शोल्डर। तो वो जो ड्राइंग जो आपका है तो उसके शोल्डर थोड़ा सा वो पीछे होता है। यही एक्सपैंडिंग फोर्स होता है जो आपको विजिबल नहीं रहता है, माइक्रो मिलीमीटर 1 मिलीमीटर में आपको लेके जाता है। कंपाउंड में सेम EH2 पे पहुंचता है, शुरू में EH रहता है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मसल देखिए एक्सपैंड कर रहा है, एंगल 2 एक्सपैंड करेगा और ये मूव करता है EH से EH2 पोजीशन पे। एंगल चेंज करेंगे, एल्बो के एंगल चेंज करेंगे, ये एंगुलर मूवमेंट होते हैं। ये मूवमेंट्स को आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में करना होता है। और देखिए क्या हमने लिखा है, वंस योर एंकर इज एस्टैब्लिश्ड द रिलीज हैंड फिंगर्स मस्ट बी हेल्ड विद कांस्टेंट एंड इक्वल प्रेशर ड्यूरिंग दिस बैक टेंशन प्रोसेस। डू नॉट मैनिपुलेट द रिलीज एड विद योर फिंगर्स। रिलीज एड जो होता है उसको फिंगर से मैनिपुलेट मत कीजिए। हुक जैसे कि कल आपको बताया था, कांस्टेंट बीच में ग्रिप सॉलिड होना चाहिए आपका। टू सिंक्रोनाइज प्रॉपर्ली विद योर बैक मसल एंड आर्म रोटेशन, होल्ड योर रिलीज हैंड रोटेटेड लेस देन 20 डिग्रीज अबव हॉरिजॉन्टल। तो बहुत सारे हमने आर्चर को देखा है उनका पाम की तरफ रहता है, नहीं, या तो 90 डिग्री रखिए आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में, या मैक्सिमम 20 डिग्री से ज्यादा आपका जो आप रिलीज पकड़ते हैं उससे ज्यादा टर्न नहीं होना चाहिए। ये बायोमैकेनिकली शूटिंग है, 100% पावर आएगा और सभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला पोजीशन में बायोमैकेनिकली उसका शॉर्ट है, उसका लाइन में नहीं है। दूसरा प्रॉपर है, रिकर्व प्रॉपर आपका देख रहे हैं कंपाउंड के लिए है। तीसरा लॉन्ग है अगर उसका एल्बो बहुत ज्यादा अंदर है। रिकर्व में देखिएगा थोड़ा सा शोल्डर बाहर रहता है, तो दिस इज द रिकर्व पोजीशन। तो दिस इज द होल्डिंग पोजीशन, प्रिंसिपल नंबर 5। अब हम चलते हैं, अभी तक तो आपने बहुत देखा बाहर के आर्चर्स का, लेकिन अपने इंडियन स्टार्स को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं अतानु का, अतानु क्या करते हैं। हाय नमस्ते, मेरा नाम अतनु दास है और मैं इंडियन आर्चर हूँ और मैंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को 2016 रियो ओलंपिक्स में। मेरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ माय शूटिंग है कि मैं जब एंकर में आता हूँ, मैं मानता हूँ कि एक अच्छा आर्चर के लिए एक अच्छा एंकर पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो अच्छा एंकर पॉइंट बनने से रिलीज भी अच्छा होता है, एंड दैट्स इट। मेरा मानना ये है कि एक आर्चर के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक होता है हुकिंग, दूसरा होता है ग्रिप एंड तीसरा है रिलीज। सो हुक, ग्रिप एंड रिलीज ये बहुत, और ये सबको अच्छा करने के लिए गुड एंकर पॉइंट बहुत मायने रखता है। सो मेरा मानना ये है कि ये तीनों चीज़ सही रहने से और एंकर पॉइंट गुड और कॉन्फिडेंट बैठने से शूटिंग अच्छा होता है। तो आपने देखा कि कितना इनका वो है जब रिलीज कर रहे हैं, देखिए कितना पुश द टारगेट में जैसे हमारे कोरियन आर्चर्स करते हैं। तो टेक्निक में कोई कमी नहीं आपने देखा तनु दास के, लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कंपटीशन में वो हैंड। हाय, मेरा नाम दीपिका कुमारी है और मैं फाइनल वर्ल्ड कप में 4 बार सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि मैं कैसे शूट करती हूँ। अपनी शूटिंग में जो मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ वो है मेरा शोल्डर और मेरा एंकर। मैं अपने बो हैंड पे ज़्यादा वर्क करती हूँ और अपने एंकर पे ज़्यादा वर्क करती हूँ ताकि जब
क्योंकि जब मेरा एंकर सेम बैठता है तो मेरा एरो लगने में बहुत मैं अच्छा शूट करती हूँ और मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट होती हूँ। सो जो मेरा मेन पार्ट है वो है एंकर। शोल्डर और एंकर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी भी मेरा शूटिंग ख़राब होता है तो मैं हमेशा अपने एंकर और अपना शोल्डर ठीक करती हूँ, बिकॉज जब भी मेरा शूटिंग ख़राब होता है तो मेरा एंकर थोड़ा अप हो जाता है या फिर मेरा जो शोल्डर है वो उठने लगता है या फिर घुसने लगता है। तो सबसे पहले मैं इन दो चीज़ों पे ध्यान देती हूँ और जैसे ही ये दोनों चीज़ें ठीक होती हैं वैसे ही मेरा ग्रुपिंग आने लगता है और मेरे स्कोर्स बढ़ जाते हैं और मैं कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। तो आपने दोनों ही आर्चर्स को देखा, अगर वो शूट कर रहे थे, अगर बोहैंड देखेंगे, ये नॉर्मल प्रैक्टिस सेशन में बोहैंड कितना स्ट्रांग था, एफर्टलेस शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने बोला हम शोल्डर पे ध्यान देते हैं, हमने एंकर पे ध्यान देते हैं, ग्रिप पे ध्यान देते हैं, रिलीज पे ध्यान देते हैं। अब देखिए एक अच्छा शॉट अगर तरुणदीप मारते हैं तो कैसे उनका 10 के अंदर जाता है। Strategies, and I guess whatever is going to have the highest performance, that's the order that you want to have. शॉट बोहैंड कैसे प्यूरी और 10 में गया उनका एरो। अब हम देखते हैं कि प्रवीण जाधव क्या करते हैं। गुड ड्रॉ, कमिंग टू एंकर, परफेक्ट शॉट। बोहैंड देखिए कितना स्मूथली उनका मूव किया। बोहैंड पुश टुवर्ड द टारगेट, एरो सीधे 10 के अंदर में गया। अब देखते हैं कोमलिका का। आपने देखा कि कोमलिका का बिल्कुल कोरियन आर्चर की तरह उसका रिस्ट रिलैक्स्ड है, पुश्ड टुवर्ड्स द टारगेट, कॉन्फिडेंट शूट कर रही है, टाइमिंग बहुत अच्छा है। तो अगर हमारे आर्चर्स, ये सब वर्ल्ड चैंपियंस, ये सब वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत चुके हैं, ये पांचों आर्चर्स जो हैं, इनके पास कैपेबिलिटीज है, ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। चाहे वो अंकिता हो, चाहे जेम्सन हो, चाहे आकाश, ये सभी आर्चर्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम में कमी नहीं है, हमारे पास पूरी पोटेंशियल है, हमारे आर्चर्स में पूरी काबिलियत है, वो लगातार 10 मार सकते हैं। क्या जरूरी है, जैसा आपको बोला, इकोसिस्टम की, इन सबको मदद चाहिए, एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, मेंटल ट्रेनर्स की, फिजिकल ट्रेनर्स की, और अगर ये सब फिजियोथेरेपिस्ट और मैसेज तो जुड़े हुए हैं, ये सब अगर इनका टीम इनके साथ काम करेगा और जो भी कोच इनसे अटैच्ड होगा, अगर वो इन सबको साथ लेके चलेगा, तो फ्रेंड्स वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब हम टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, नमस्ते, कीप हिटिंग द बुलसाई एंड वी आर रेडी फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। Thank you, sir. Vishwajit here. Sir, I have already forwarded you all the questions that have come today, so you may just have a look at them and then answer. Okay. Meanwhile, I'll be putting up the webinar ID for Sports Science for everyone to note down. So kindly all the participants note down the webinar ID and you can join in every day at 5 p.m. Thanks. So, एक करके हम क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें इन्होंने पूछा है व्हाट शुड बी द परफेक्ट टाइमिंग फॉर अ कंपाउंड एज वेल एज रिकर्व आर्चर टू शूट विद। जैसा कि हमने बताया फ्रेंड्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट वी हैव टू एंश्योर कि मेरे जो शूटिंग स्टाइल है, जैसा आपने कोरियन आर्चर्स को देखा, आपने यूएस आर्चर्स को देखा, अपने इंडियन आर्चर्स को देखा, आपने क्या देखा, जब वो टाइट शॉट मारते हैं तो हमेशा उनका जो शूटिंग है 7 to 10 सेकंड्स के अंदर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मैक्सिमम टाइमिंग किसी भी कीमत पे 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा बोला, सर व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हेन वी होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए क्या होता है, हमारे जब फिजियोलॉजिस्ट बताएंगे, हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट बताएंगे, हमारे फिजिकल ट्रेनर्स बताएंगे अभी आपको, कि जब आप ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं, बॉडी की एनर्जी सीमित है। आप क्या होता है, जब आप ड्रॉ करते हैं, हाफ ही ब्रेथ लिए होते हैं, हाफ ब्रेथ को मैक्सिमम सेकंड तक आप 6 सेकंड से ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते। तो 3 सेकंड आइडियल टाइम होता है कि जब आप अपना एंकर टू रिलीज में विद इन 3 सेकंड लाएं। जब आप 3 सेकंड से ज्यादा लेने लगते हैं तो बॉडी की एनर्जी डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन आप नहीं ले रहे हैं, आप कांस्टेंट है, आप एरोबिक स्टेट में है। अब आप एनारोबिक स्टेट में जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है बॉडी में। तो जब आप टाइम ज्यादा लेते हैं तो क्या होता है, आपका कंट्रोल कम होता है और शॉट्स इसीलिए आपका कॉन्फिडेंट नहीं होता, टाइट नहीं होता, और आप देखेंगे कि एरो हमेशा 9 में या 8 में चला जाता है। शुड वी एम विद 2 आईज और विद बोथ? देखिए नेचुरल क्या है, नेचुरल बोलते हैं दोनों आईज से। तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका एक आई डोमिनेंट होता है,
तो आप दोनों में, दोनों एरो से आप चला सकते हैं, दोनों आइज खोल के। अगर दिक्कत होगी तभी आप सिंगल से चलाएं, अदरवाइज यू कैन इजिली डू। फिंगर प्लेसमेंट ऑन स्ट्रिंग, फिंगर प्लेसमेंट देखिए आप ये हमेशा याद रखिए, जब आप फिंगर प्लेस करते हैं पहला फिंगर ऊपर है, ये जो ग्रिप का होगा, ये जो हुक जो देखते हैं हमेशा मिडिल फैलेंज पे होना चाहिए। आप देखेंगे जितने टॉप आर्चर्स का जो थर्ड फिंगर है वो भी कम से कम अगर फुल नहीं अंदर है तो लेकिन, तो इसीलिए बोलते हैं 50-30-20। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50-30-20 का आप प्रेशर जो है आप जब बना के रखते हैं, ये एंकर सॉलिड होना चाहिए। जैसे अतानु ने बोला कि जो हुक है, हुक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हुक अच्छा है तो आप हमेशा पाएंगे कि आपका कंसिस्टेंसी ज्यादा बेटर रहेगी। What is right, sir? Expand time. Some archers bow hand goes down and some of the stands stay. देखिए आपने सभी आर्चर्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछा है। आपको ये मानना पड़ेगा, ये बायोमैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप फोर्स को पुश कर रहे हैं, आपको हमेशा, जैसे ये आपने ग्रिप देखा, देखिए बो को हमेशा जंप करना चाहिए सामने। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स होता है वो सामने होता है, टुवर्ड द सेंटर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपका एक्सपैंड जब आप करते हैं, वो हैंड ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप देखिए अतानु दास, तरुणदीप और प्रकाश जाधव और कोमलिका बारी या आपने जितने ओलंपिक मेडलिस्ट को देखा, वो हैंड आप देखिए वहीं पे होना चाहिए, ड्रॉप नहीं। ड्रॉप क्या करता है, जब तक 2 मिलीमीटर एरो निकल नहीं जाए उसके बाद ड्रॉप करता है। तो अगर स्लो मोशन में आप देखेंगे किसी भी ओलंपिक मेडलिस्ट को 5 मिलीमीटर या 2 सेकंड के लिए जब तक वो एरो निकल नहीं जाता तब तक वो हैंड पुश रहता है टारगेट की तरफ और वो एरो को वो जंप देखता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बो को तुरंत नीचे मत ली जाए। बहुत कम ने देखा है वो हैंड खट से नीचे ले जाते हैं, वो गलत है। वो हैंड पुश होना चाहिए। अगर पुश होगा कभी भी नीचे नहीं जाएगा, हल्का सा 2 सेकंड बाद वो नीचे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दे नीड टू रोटेट द बो हैंड व्हेन वी पुल द बो, वेयर इज द आर्म गार्ड अटैच? आर्म गार्ड तो देखिए जब आपका क्या होता है, जब आप एरो को के बो हैंड को आप रोटेट करते हैं तो रोटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका क्या होता है कि आपको क्लियरेंस मिलने के लिए और आपका लाइन ऑफ एक्शन जो बो बैरल ऑफ द गन बोला गया है वो बैरल ऑफ द गन स्ट्रेट होने के लिए, तो वो रोटेटेड होना चाहिए। लेकिन आपका जो आर्म गार्ड है वो आगे रहना चाहिए। फिंगर प्लेसमेंट हमने बता दिया। ब्रीदिंग का जहां तक आपको बता दें, जितने भी टॉप आर्चर्स हैं, जो लोग क्या करते हैं, जब हमने ड्रॉ स्टार्ट किया, जब आप एंकर पे आते हैं तो हल्का सा फुल ब्रेथ नहीं रहता है। आप जब ब्रीदिंग करते हैं जब तक एंकर पे आते हैं, उसके बाद आपका हाफ ब्रेथ पे आते हैं और जब फुल एंकर पे आते हैं आपका हाफ ही ब्रेथ रहता है। उसमें बॉडी फुली पूरा भरा नहीं रहता है, हाफ रहता है। और जब आप एक्सपैंड करते हैं उसके बाद दोनों शोल्डर्स को रिलीज करते हैं तो क्या होता है, ब्रीदिंग आपका स्लोली ब्रीथ आउट होता है और फॉलो थ्रू के साथ साथ वो हैंड पीछे जाता है। तो वो हमेशा याद रखिए कि जब आप रिलीज करते हैं उसके बाद आपका सांस भी बाहर जाता है और साथ ही साथ आपका फॉलो थ्रू भी, और आपने देखा सबका फॉलो थ्रू ऐसे जाता है। क्यों? स्ट्रेट लाइन में निकलेगा और स्ट्रेट लाइन में उसके बाद 45 डिग्री एंगल पे निकलता है। ट्यूनिंग इज फाइन बट फ्लाइट इज नॉट ओके। देखिए कभी कभी क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग आपको कल बताया गया था, फाइन ट्यूनिंग करना। तो बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे परफेक्ट आपका क्लीन आपका निकल गया पेपर ट्यूनिंग में, लेकिन वहां पे भी आपको थोड़ा सा ट्यूनिंग, चाहे आपको स्टेबलाइजेशन सिस्टम में, ब्रेसिंग हाइट में या आप एरो के स्पाइन में, कभी कभी हमें पीछे भी कट करना पड़ता है। तो हमें वो बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके हम देखते हैं कि जब फाइनल 70 मीटर या 50 मीटर में कंपाउंड में ग्रुपिंग टाइटनेस लाने के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। वो कोच के साथ आप चेंज कीजिए, तभी आप और अच्छा फाइन ट्यूनिंग हो पाएगा। इफ द एल्बो इज अप, देखिए क्या होता है जब आप शूट करते हैं, आपने देखा आपका क्या होना चाहिए, जो एरो का लाइन हमने बताया, एरो का लाइन में देखिए ये शोल्डर ये रहना चाहिए। बहुत ज्यादा अप या बहुत ज्यादा डाउन दोनों ही अच्छा नहीं है, क्योंकि फोर्स जो है वो अगेन एंगल बना रहा है। जितना आप एंगल बनाएंगे फोर्स डिवाइड होता चला जाता है। तो कॉस थीटा में जैसे जैसे डिवाइड होगा फोर्स कम होता जाता है। तो आइडियली बोला जाता है कि जब आप स्ट्रक्चर सेलेक्ट कीजिए तो जिन बच्चों का जो एल्बो लाइन में रहता है एरो के, वो बहुत अच्छा माना जाता है आर्चरी के लिए। और मैक्सिमम आर्चर्स का आप वैसे ही देखेंगे। इंडियन बो पाउंडेड 46 है और रिकर्व जाना है तो कितना पाउंड? देखिए आपको कल सभी लोकेश ने भी बताया, आपको हमारे जो कंपाउंड कोच ने भी बताया। हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है, अगर आप ओलंपिक में मेडल चाहते हैं, तो जैसे हम अपने अकेडमी में ट्रेन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम शुरू में उनको 10 मीटर पे ही कराते हैं, हार्डली 20 पाउंड के बो से। और जब तक उनका शूटिंग मैच्योर नहीं होता, हम कभी भी उनको 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर नहीं ले जाते।
तो 12 इयर्स या 8 इयर्स पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं आइडियल है। 12 साल तक आते आते का फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका फंडामेंटल नहीं स्ट्रांग है, अगर आपका बेसिक नहीं स्ट्रांग है, तो आप पाउंडेड लेके आप आज तो मान लेंगे लेकिन कल नहीं मार पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, लो पाउंडेड 20 से स्टार्ट कीजिए, 24 पे जाइए, 26 पे जाइए, 28 पे जाइए। हम मानते हैं कि पैसा लगेगा, लेकिन अगर आपको ओलंपिक में पदक जीतना है तो आपको कुछ पैसा खर्च करना होगा लिम्ब बदलने के लिए, लो पाउंडेड से हाई पाउंडेड जाने के लिए। एंकर आने पे स्केपुला में प्रेशर टारगेट का क्या होगा, आपको हमने बताया था कि जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए वो कीशिगली क्या बोलता है, ये जो है वो लाता है, ये सेट आ गया, फिर सेटअप में अगर ये सेट आया थोड़ा नीचे, फिर सेटअप जब कर रहा है तो स्केपुला वहां पे मूव करना शुरू हुआ, एल्बो मूव करना हुआ। वो बायोमैकेनिकली हमने एंगल देख के बताया था कि वो आता है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि वो मूव आएगा क्योंकि ये शोल्डर पुश किया हुआ है, लेकिन दिस एल्बो हैंड इज स्लाइटली मूव करके फाइनल पोजीशन पे जब आएगा, जब एल्बो अलाइंड होगा एरो के, वो पोजीशन है जब परफेक्ट पोजीशन आ गया, होल्डिंग पोजीशन। और वहीं पे हमने जैसे एक्सपैंड करेंगे 1 मिलीमीटर, अपने आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बैक टेंशन को निकलता है। तो दैट इज द वे, आइडियल वे ऑफ शूटिंग। कैन वी ट्रीट ट्रिगर एंटिसिपेशन? देखिए अगेन आपको बताया कंपाउंड में क्या होता है जब आप शूट करते हैं कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल ये देखिए आपने ये किया, ये कंपाउंड में हमने क्या किया, हमने अपना लॉक कर दिया। अगर हमने कंपाउंड में लॉक किया, अब आप देखिए हमने ये देखिए मेरा थंब किधर है, बिल्कुल ये देखिए कितना डीप हुक है, ये थंब आपका आ गया इस पे। अब हम जब यहाँ पे एंकर पे लेके आ गए, अब क्या होता है जब पूरा बैक में टेंशन होता है, देखिए अपने निकल गया, हमने कुछ भी नहीं किया, मेरा थंब वहीं पे है। क्यों? क्योंकि जब आप फोर्स जो यूज कर रहे हैं, बायोमैकेनिकली जो फोर्स यूज करते हैं, मैक्सिमम 100% पावर आता है। एंगल जो हमने बोला क्या है, देखिए मैक्सिमम 20 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप हॉरिजॉन्टल है और अच्छा है, या मैक्सिमम 20 डिग्री। अगर आप इस पे रखेंगे, थंब देखिए कितने अच्छे से बैठा हुआ है, और जैसे ही बायोमैकेनिकली 100% ट्रांसफर करेंगे और उसमें निकालेंगे तो ये हमेशा 1 मिलीमीटर पीछे जाएगा। वो हैंड वो जंप 1 मिलीमीटर आगे जाएगा, 100% ऑफ द फोर्स लगेगा, और चांसेस एक्स लगने के सबसे स्ट्रांग रहते हैं। तो आपने जो और भी अगर जो भी क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अगर और जो भी क्वेश्चंस होंगे, kindly explain barrel of the gun. According to me, when we draw and reach anchor point, all the pulling load is transferred to the bone structure and the point comes to 1 millimeter. Is this the barrel of the gun situation? Yes. जब आपका स्केपुला पूरा पावर ले लेता है तो आप देखेंगे थोड़ा सा वो हल्का सा उठा रहता है, राइट स्केपुला कंपेयर टू द लेफ्ट स्केपुला, जो शोल्डर ब्लेड, तो उसको बैरल ऑफ द गन बोलते हैं। कि आपका गन क्या होता है कि जो आपका बो हैंड है जो पुश कर रहा है, वो वाला लाइन along with the left shoulder and the right shoulder, वो जो एंगल बनाते हैं उसको बैरल ऑफ द गन बोला जाता है। देखिए पुश एंड पुल, देखिए हर आदमी को अलग तरीके से समझाता है। आपको हम हमेशा बायोमैकेनिकली बताएंगे। बायोमैकेनिकली क्या बोलता है, 50% लोडिंग हैज टू बी ऑन द फोर्थ। देखिए शोल्डर बैलेंस ही नहीं हो सकता ना, ये तो साइंस है। ये अगर कोई कोच और किसी के समझाने पे मत जाइए, आपको बेसिक साइंस यूज करना है। साइंस क्या बोलता है, अगर आपको ये थ्रेड है, अगर हम इसको खींच रहे हैं, अगर हम दोनों को, अगर हम इसको देखिए, अगर हम ये क्या है, अभी हम खींच रहे हैं, अगर हम लेफ्ट को ज्यादा पुल करेंगे तो क्या हो गया, एंगल बन गया। अगर हम राइट को ज्यादा पुल कर रहे हैं तो उल्टा एंगल बन गया। तो हमेशा याद रखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलता है जब भी आप लेफ्ट को ज्यादा पुश करेंगे तो आपका एंगल बन जाएगा, जब राइट को पुश करेंगे फिर एंगल बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन रहा कहां, क्योंकि आपने एंगल बना दिया एरो और अपने एल्बो में। तो ग्रिप का पोजीशन, एरो लाइन, एल्बो लाइन, वो स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए। तब आप अगर इसको हम खींच के अगर हम बीच में काटेंगे तो क्या होगा, आपका देखिए दोनों हाथ और दोनों चीज एक्सपैंड करेगा, वही चेस्ट एक्सपैंड कर रहा है। तो आपका प्रेशर सेम होना चाहिए। तो साइंस क्या बोलता है, दोनों प्रेशर बराबर होना चाहिए, और बराबर जब रहेगा तो जैसे ही आप 1 मिलीमीटर एक्सपेंडेड इज माइक्रो एक्सपेंशन, तो वो क्या होता है, जैसे आपका बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बैक टेंशन वो अपने आप होगा, पुल नहीं चेंज हो रहा। माइंड यू, ये अभी भी 50%। सुनिए क्या बोल रहे हैं लोग, एंकर पे आने के बाद बॉडी होल्डिंग पोजीशन पे कांस्टेंट रहता है, मतलब पुश एंड पुल दोनों 50% पे रहते हैं। जस्ट आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मसल को 1 मिलीमीटर और एरो रिलीज होता है, बॉडी शोल्डर एक्सपैंड, बैक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों, ये प्रिंसिपल है साइंस का। तो आप साइंस में जाइए, वो सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है कोई भी चीज को। आप बोलते हैं आई हैव 1 मिलीमीटर एट द क्लिकर बट एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। अगेन
आप लोग देखिए क्या कर रहे हैं, आप लोग बॉडी पे फीलिंग नहीं कर रहे हैं। आपने देखा ब्रैडी एलिसन ने क्या बोला, फीलिंग फीलिंग एंड फीलिंग। आप हमेशा याद रखिए, जब तक आप फील नहीं करेंगे, हमने क्या आपको समझाया था, जब आप एंकर पे आ रहे हैं, चाहे वो आप रिलीज रिकर्व या कंपाउंड, दोनों में आप आ रहे हैं एंकर पे, आप बैक मसल्स पे फील आप ट्रांसफर करना शुरू किए। किशिगली क्या बोलता है, 60 60 80, यहां पे 60 आया, यहां पे 80 आया, फाइनल जब लाइन में आ गए 95, और देन ओनली अ कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग। तो आपका पावर तो शिफ्ट हो रहा है बैक मसल्स पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बैक मसल्स आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप माइंड में वो प्रेशर सिचुएशन बैक मसल्स की फील नहीं कर रहे एंकर पे, देखिए आपको कैसे पता चलेगा 1 मिलीमीटर एक है, या तो आप देखें, बट अगर आप देखते हैं सब उतना माइंड स्ट्रांग नहीं रहता है, देखने के बाद फिर आप आपका साइड पे जाए। तो बहुत अच्छे आर्चर्स क्या करते हैं, फील डेवलप करते हैं कि चाहे वो रिकर्व हो चाहे वो कंपाउंड हो, दोनों में वो क्या बैक टेंशन की फील है, जिस फीलिंग के ऊपर में अगर आप वो फील आ गया, तो आपको पता है कि अगर हम जस्ट पुश एंड पुल किए बराबर से, जस्ट उसको प्रेशर को मेंटेन करेंगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आप खुद देखेंगे फ्रेंड बिल्कुल परफेक्ट एरो एक्स में जाते हुए। हमने खुद किया है, खुद देखा है, इसलिए हम बता सकते हैं कि मेंटली फीलिंग क्या होती है। जितने भी अच्छे आर्चर्स हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो बोलेंगे वो फील बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब वो बोलते हैं फील क्या होता है, जब आप माइंड को ट्रेन करते हैं तो धीमे धीमे वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। जैसा ब्रैड एलिसन ने बोला, वो जब एंकर के आने के बाद माइंड कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस माइंड, और वो एक्सपैंड करके वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल्स को, वो अपने आप को स्मूथ मोशन में, टाइमिंग में आपका निकलेगा शॉट, एंड परफेक्ट आपका ग्रुपिंग एक्स के अंदर लगेगा। तो अब हम आपसे सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी आपके पास क्वेश्चन होगा, आप हमें ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है sanjeeva.singh@tatarealty.in या singsanjeeva@gmail.in। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो 9004368097, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी ईमेल व्हाट्सएप आप कर दे, कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन आर्चरी में पूछना हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आप पूछे, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का। अगर आप वीडियो भी हमें भेज देंगे शूटिंग का, हम आपका शूटिंग के वीडियो को एनालाइज करके आपको बताएंगे कि कैसे क्या गलती आप कर रहे हैं। तो ऐसा अभी देखिए डिजिटल वर्ल्ड हो गया है आज। भारतीय तीरंदाजी संघ में या और हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण ने, दोनों ने आज डिजिटली आपको एजुकेशन ले जा रहे हैं हर आर्चर के पास, हर कोचेस के पास। तो आज आपके सभी हमारे जितने भी आप देखेंगे उनके मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं जो इसके बाद आएंगे आपके पास, सबके मोबाइल नंबर, सबके ईमेल आईडी आर्चरी एसोसिएशन इंडिया ने हर स्टेट एसोसिएशन को भेज दिया है। उन्होंने मेल भेज दिए हैं, उसमें नंबर्स हैं, ईमेल आईडीज हैं। आप किसी भी समय आप डिजिटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने कोचेस को, अपने एक्सपर्ट्स को, और वो सभी लोग हेल्प करने की कोशिश करेंगे डिजिटल मीडिया के जरिए। तो ये सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग मीडिया है, हम इसका फायदा उठाना चाहिए। और हमारे कोचेस डेवलपमेंट कमिटी जो हमारे चंदूकर साहब हैं, हुसैनी जी हैं, डॉक्टर जोरिस हैं, उन लोग भी कोशिश कर रहे हैं। ये सभी जो आपके रिकॉर्डिंग की जा रही है, ये टोटल प्रोग्राम्स के आपके, और ये सब आपको डिजिटली आपके स्टेट एसोसिएशन को साई के थ्रू, एआई के थ्रू आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, और जिससे कि आप उसको बार बार सुने और उसको समझे। और जहां पे भी कोई दिक्कत हो, आप मेरा जो पैनल जो टीम है, जो हमारे कोचेस का पैनल है कंपाउंड एंड सीनियर्स का, जो हमारी जो जितने स्पोर्ट्स साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, अभी कल गायत्री जी करेंगी, उसके बाद हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट आ रहे हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, हमारे दो मेंटल ट्रेनर्स आ रहे हैं, हुसैनी साहब खुद और मजुमदार जी आ रहे हैं। तो ये सभी लोग आपको बताएंगे जो कंपाउंड के बिगनर्स और रिकर्व को बिगनर जो सिखाना है, रंजीत जी आ रहे हैं जो आपको बताएंगे, रुपेश सिंह डिस्कस करेंगे आपके प्लान कैसे होना चाहिए, पीरियडाइजेशन जो होता है, ट्रेनिंग प्लान क्या होगा, ये सब के बारे में आने वाले अभी बाकी सेशन है। पास्कल साहब आने वाले हैं, जुड़ने वाले हमसे 22 और 23 तारीख को, जब वो साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो आपके पास स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारा जो आर्चरी एसोसिएशन इंडिया, हमारा कोचेस डेवलपमेंट कमिटी, सब लोग अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को ला रहे हैं कि डिजिटल मीडिया के जरिए आप उनसे बात करें, डिजिटल मीडिया के जरिए उनसे सीखें, उनको समझें। और अगर कोई भी दुविधा हो, आप कोचेस को बोल सकते हैं, कोचेस डेवलपमेंट कमिटी को बोल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, और आपको कोई भी अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया, प्लीज फोन करें, प्लीज व्हाट्सएप करें, प्लीज ईमेल लिखें। हम लोग कोशिश करेंगे आपको एक्सप्लेन करके बताने का और आपके कोचेस को फर्दर ट्रेन करने का। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद।
विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपको अगले सेशन में, जब कल 9 बजे। लेकिन साथ में बता दे, साई ने जैसा बोला है, आज 5 बजे स्पोर्ट्स साइंस का सेशन होगा। आप उस सेशन में भाग ले, स्पोर्ट्स साइंस का नॉलेज जनरेट करें और उससे आपको और अच्छा कोचिंग देने में फायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। Thank you, sir. Sir, Chandukar sir is here. I request Chandukar sir. Can I request Mr. Chandukar to say a few words? Chandukar जी। या संजीव जी, आज आप एक बहुत अलग तरीके के पहलू के साथ आप सभी आर्चर के सामने, सभी कोचेस के सामने आए हैं। सिर्फ फिजिकल फिटनेस, स्किल प्रैक्टिस, इसी से आप चैंपियन नहीं बन सकते, बल्कि आपको एक स्पोर्ट्स साइंस, साइंटिफिक बैकअप बहुत जरूरी है। और संजीव सिंह ने बहुत बेहतरीन रखी है। और यही सारी चीजें हर रोज शाम को अलग अलग हिंदुस्तान के अच्छे साइंटिस्ट, चाहे वो स्पोर्ट्स मेडिसिन के हो, कैंसियोलॉजी हो, बायोमैकेनिक्स हो, न्यूट्रिशंस हो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो, फिजियोथेरापिस्ट हो, इनके द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको एक बहुत बेहतरीन साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक बैकअप दे रहा है। मैं सभी कोचेस, सभी आर्चर, सभी आर्चरी लवर्स के साथ जरूर विनंती करूंगा कि आप इन सेशंस को देखें, समझने की कोशिश करें और आपके स्किल और फिजिकल फिटनेस के साथ साथ साइंटिफिक वे को भी आपके रोज की प्रैक्टिस में जोड़ दे, ताकि आपको सही तरीके से चैंपियन बनने में मदद मिलेगी और आप सही तरीके से आगे बढ़ सकते हो। दूसरा एक पहलू मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। संजीव सिंह ने जिस तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया, कितना बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया, और मेरी कोशिश है कि ये नॉलेज जो आप तक पहुंच रहा है, ये नॉलेज आप आपके साथ में जुड़े हुए जो भी कोचेस है, चाहे वो क्लब कोचेस हो, चाहे आपके स्कूल के कोचेस हो, चाहे स्कूल के फिजिकल टीचर्स हो, आप उनके साथ तक इसे पहुंचाने की कोशिश करिए। मैं बार बार आपको ये विनंती कर रहा हूं कि हमें ग्रास रूट आर्चरी को डेवलप करना बहुत जरूरी है। यदि हम ग्रास रूट आर्चरी को डेवलप कर सके, हमारे गांव के दूर दूर गांव के जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें शायद किसी द्रोणाचार्य अवार्ड या किसी वर्ल्ड के बेस्ट कोच के साथ मिलने का कभी शायद मौका ना मिला हो, आज डिजिटल के माध्यम से वो आप तक जुड़ रहे हैं और इस चीज का आप फायदा लो, आपके साथ में जुड़े हुए लोगों को आगे लाए, ताकि हम इस हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा आर्चर्स को डेवलप कर सके। और एक पहलू मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, जो हमारे कोचेस हैं, आज जो हमारे आर्चरी लवर्स इस सारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्या हम इन चीजों को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं हमें भी इंटरनेशनल लेवल पर जाना होगा। क्या हमारे कोचेस, हमारे साइंटिफिक ऑफिसर इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रेजेंट नहीं कर सकते? आज संजीव जी ने इतना अच्छा जो प्रेजेंटेशन दिया है, मैं जरूर चाहूंगा कि संजीव जी सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जाकर भी लोगों को हमको ट्रेन करना होगा। हमारे दीपिका, हमारे अतानु आज वर्ल्ड चैंपियंस हैं, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मगर हमारी कमजोरी ये हो रही कि हम उसे कहीं ना कहीं प्रेजेंट करने में कमजोर पड़ रहे हैं। आपने जो साइंटिफिक वे दिखाया है, उन साइंटिफिक वे का स्टडी हमारे यहाँ होना बहुत जरूरी है। हमारे पास भी कई सारे लोग हैं, कई सारे कोचेस हैं, कई सारे साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं जो इन चीजों को समझ रहे हैं, सिर्फ उन्हें आगे लाने की जरूरत है। और मैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इन जैसे हिडन टैलेंट्स को बाहर लाकर एक अच्छा ग्रुप बनाकर हम इन लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर प्रेजेंट करेंगे, ताकि दुनिया को भी ये पता सके कि इंडिया में भी इतने अच्छे लोग हैं जो दुनिया को पढ़ा सकते हैं। हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर आना ही होगा और तभी हम आएंगे, तभी हमारा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिस तरह से आपने कोरियन लोगों की फिल्म दिखाई, आपने अमेरिकन वर्ल्ड चैंपियंस को प्रेजेंट किया, क्या हमारे दीपिका, अतानु इस तरह से दुनिया को हम शो नहीं कर सकते? हमारे भी वर्ल्ड चैंपियंस है। संजीव जी, मैं आपसे विनंती करता हूं कि सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर साइंटिफिक वे से, हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे अच्छा अथॉरिटी है। हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर है जो दुनिया को यह बता रहा है
कि हम दुनिया में बेस्ट है। अब इन सभी चीजों का फायदा उठाकर आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया दुनिया का नहीं, वर्ल्ड आर्चरी एसोसिएशन में एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। और आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, इन्हीं के साथ हम दुनिया के टॉप लेवल पर पहुंचेंगे। आपका साथ और आपका सहयोग इन चीजों के लिए मुझे चाहिए और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सभी आर्चर्स। मैं फिर से एक बार विनंती करूंगा कि स्किल और फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आप साइंटिफिक वे को जरूर अपनाएं। और शाम को हमारे होने वाले सभी सेशंस, आज 755 मैक्सिमम पार्टिसिपेंट हमारे आज तक थे, इतने ही पार्टिसिपेंट ने शाम को भी अटेंड करना है और इस प्रोग्राम का पूरा फायदा उठाना है। यह दुनिया का बेस्ट शो बनते जा रहा है। धीरे धीरे मैं कई बार देख रहा हूं, मुझे कई बार बांग्लादेश, नेपाल, इन लोगों के भी फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर हम इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, हम इसे देखना चाहते हैं, हम इसे समझना चाहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। थैंक यू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट चंदू जी, आपने बहुत अच्छा बोला। और यही चीज हम लोग का, जो आपका ये विजन है, जो मुंडा जी का विजन है, जो हमारे खेल मंत्री का विजन है, जो हमारे साई का विजन है, मेरा पूरा विश्वास है कि आपके डायरेक्शन में, आपके लीडरशिप में, कोचेज डेवलपमेंट कमेटी, मुंडा जी के लीडरशिप में, तीरंदाजी डेफिनेटली टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप जिस तरह से, जिस विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उस विजन में आप कामयाबी पाएंगे और पूरा देश आपके साथ है, पूरे कोचेज आपके साथ है और आप जरूर इस चीज को पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, Sanjeev, sir. See you again tomorrow morning. Thank you, sir. Thank you, Sanjeev, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Just another request. Kindly repeat your mobile number and email ID for everyone. We have been receiving lots of messages. मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 900900436809 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो समझने में, कोई भी अपना टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ आपको उसमें सुझाव चाहिए, आप एक छोटा सा वीडियो बनाइए, फ्रंट से, बैक से और पीछे से, तीनों एंगल से एक छोटा सा 3 तीर चलाते हुए वीडियो बना के भेजिए। हम उसको एनालाइज करके हम आपको बताएंगे कि क्या आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। मेरा ईमेल आईडी है singsanjeeva SINGHSANJEEVA singsanjeeva@gmail.com। आप इस पे आप कर लें। मोबाइल नंबर है 9004368097। आप भेजें, हम कोशिश करेंगे, जैसे चंदूकर जी कहा, हम लोग पूरी टीम जो कोचेस डेवलपमेंट कमेटी है, जो हमारे जितने भी टॉप कोचेस हैं, जो हमारे 20 एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, इस प्रोग्राम को बनाने में, हम सभी लोग ये कोशिश करेंगे आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाए, आपके हर एक टेक्निक के बारे में समझा पाए, साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर पाए, जिससे कि जैसा चंदूकर जी ने बोला कि वो आर्चरी को क्रिकेट बनाना चाहते हैं, वो आर्चरी को हर एक नुक्कड़ में ले जाना चाहते हैं, और हमारे जो अध्यक्ष हैं मुंडा जी, वो इस खेल को हर एक ट्राइबल बेल्ट में ले जाना चाहते हैं, हर ट्राइबल स्कूल्स में ले जाना चाहते हैं। और ये चीज अगर दोनों मिलके होगा, हम जरूर उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम साउथ कोरिया से और आगे निकलेंगे और पदक जीतते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।